sir, for you. Congratulations. Nifty crossed. So good evening, everybody. So we are here on the first day of the 6-day series of virtual investors awareness program. Practically, this topic is very close to my heart, and I'm sure all of us being finance professionals, or probably some of us are students, this topic is close to your heart as well. So this event is organized by the Pune branch of WIRC of the CA Institute, jointly with Pune branch of Vikasa of ICAI, and it is under the aegis of Committee on Capital Market and Investors Protection, ICAI. Today we are on the first day, and we have our eminent speaker, CA Jitendra Khandol, who is joining us from Kutch, Gujarat. And he is going to deliver his speech on how to become a successful trader. And I'm sure it's like this is something all of us are very keen to know about the psychology of trading. It is said that trading is all about regrets. That is what I have heard all the time, like you regret about why you have invested, or you regret about why you have booked a profit, you regret about why you have exited earlier, and all those things. So I think it is all about the psychology of trading. And I now request CA Samir Ladha, our the chairman and treasurer of Pune ICAI, to give opening remarks. Well, thank you, Smita. Today's respected speaker, CA Jitendra Khandol, my colleague in committee member, CA Amruta Kulkarni, CA Smita Kunte, today's MOC, large number of members as well as students. Welcome in first session of today's first session on investor awareness, hosted by Pune branch of ICAI along with the Vikasa committee of ICAI. First of all, I congratulate all the participants to become participants of this wonderful series. Dear participants and dear students, investment awareness is a very, very important topic in my view, as nowadays interest rates are reduced tremendously and real estate investment is also not always welcome step. In this situation, our clients always dependent on us about the suggestions given by the chartered accountants. So this knowledge on various investments options are very useful to you, as well as value addition for your clients in your practice. And today's topic, especially on trading in share market and F&O, is a most likely subject of especially youngsters nowadays. I know many students are also doing trading in the share market, and many times we do, including me, many times we do trading only on rumors or some tips given by some friends or some brokers, and many times we found that we make loss after some days. We found that we depended on the tips given by some friends or some brokers, and without knowledge we do trading. So it is always a welcome step to take the knowledge of from experts like say Jitendra Khandol. Sir, thank you very much for your time to us. And as this is a opening batting of this series, so opening batsman is always very good, very well done. I can say, well, beginning is a half success. So thanks a lot for opening this series. Thanks a lot. Welcome on behalf of Pune branch and Vikasa. All the students and members wish you happy learning. Over to Smita for further process. Thank you so much, Samir. Now I will introduce you to our today's speaker, CA Jitendra Khandol. He is a chartered accountant having a trading experience of more than 20 years in stock market and futures and options segment of equity derivatives. He is a past chairman of Gandhidham branch of WIRC of ICAI. He is a founder of professional equity group consisting of chartered accountants and professional experts of stock market from all over the India. The motto of the group is to share knowledge related to equity market and to provide an avenue as an additional career option. So absolutely sounds wonderful.
may I now request Jitendra sir to take the charge, and we all are eager to listen to your words of wisdom. I appeal to all the audience to come up with the questions. As and when the session is in progress, or maybe like sir is going to deliver a speech of around 45 minutes to an hour, and after that, he wishes that it should be an interactive session. So you come up with your questions, and sir will be happily replying, answering to those questions. So over to you, sir. Respected Chairman of the Pune branch, Samirji, MOC Smitaji, other office bearers of branch, and my dear participants. At the outset, I am thankful to Pune branch for inviting me as a speaker on today's webinar on how to become a successful trader. Friends, first and foremost thing which is required to be kept in mind before jumping into the stock market is you must be clear about whether you are a trader or investor. Because as per my experience of last 20 years in stock market as active traders, I observed that majority of traders or so-called investor in the market are themselves doesn't know whether they are trader or investors. I will give you a simple example on this. Jayesh Bhai, a regular trader, buys one lot of Reliance Industries at rupees 2,000 for trading purpose. As he thinks prices should go up, and fortunately, within a day or two, Reliance share prices goes say up to 2,100. Wow! Then he thinks, wow, it's a 5% return on 2 days. So 75% return on a monthly basis. And we see always happy with three type of tremendous returns. So he sold one lot at 2,100 and booked profit in his trading position. But what happens if the share prices say fall up to 1,800? Then he thinks, I shouldn't worry, because Reliance is a fundamentally good stock and FII is also heavily investing into the stock. So ultimately, in the long run, share price of Reliance will go up, and by that means he is converting his trading position into the investment position. So what I mean to say that for a trader, if trade goes in his favor, then it's a trading. But if trade goes in his unfavor, then it's an investment. That's not true. Friends, this is dangerous. जब भी आप ट्रेडिंग में कोई भी पोजीशन लेते हो, रिमेंबर माय वर्ड्स, जब भी आप ट्रेडिंग में कोई भी पोजीशन लेते हो और अगर आपका ट्रेड अनफेवर और लॉस मेकिंग हो जाता है, तो आपको वो ट्रेड को कभी भी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करोगे, तो आई एम श्योर you should not make money in the trading anytime, and in the end you will be the losers only. Friends, with this we are starting with a set of rules to be strictly kept in mind in your trading patterns if you want to become a successful trader. Please note that these trading rules are the summary of my trading experience of last 20 years, 2 decades as active trader in the future and option segment of equity derivatives. Friends, whenever I am talking about trading, that means trading into the future and option segment of equity derivatives. Now, I will start with my presentation. How to become a successful trader. Golden rules of trading. Golden rule number 1. Whenever you are trading for the first time, take only 10% risk of the total amount available for the trading. Friend, this says whenever you start for the first time trader, then in the first trade,
you should take only 10% risk of the total amount available for trading, so that even if your first trade goes wrong, you have in your hand 90% of the capital, and you again divide 90% of the capital into 10 and take appropriate risk in your next trade. Even if your trade goes favor, and say you have started with 1 lakh of capital, and in the first trade you have earned 20,000 rupees. So in the next trade, your total risk will be 1 lakh plus 20,000 profit divided by 10 is equal to 12,000 rupees. So in the next trade, your maximum stop loss should be, or I can say, not more than 12,000 rupees. So whenever your trade goes in favor, you can take extra risk. Whenever your trade goes unfavor, you can take less risk. Friends, in order to earn regular profits from trading, you must ensure that you will be in the market all time. Remember me, market is just like a cricket match. अगर क्रिकेट में आपको लॉन्ग टाइम में बहुत ज्यादा रन्स और बनाने हैं, तो आपको लंबे टाइम तक पिच पे टिके रहना जरूरी है। वैसे ही अगर आप ट्रेडिंग में ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने चाहते हो, तो आपको लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिके रहना जरूरी है। बिकॉज अगर आप कोई एक ही ट्रेड में इतना पैसा गंवा दोगे, देन यू विल बी द आउट ऑफ मार्केट। सो ऑलवेज kept in mind that you are in a trading as long as possible. मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप ट्रेडिंग में आके ऐसे ही रिस्क लेने लगोगे, तो 2, 3 या 4 ट्रेड में आपकी कैपिटल वाइप्ड आउट हो जाएगी। सो यू हैव टू टेक एप्रोप्रिएट रिस्क एट स्टार्ट, एंड इवन अगर आप लंबे समय तक भी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ईच एंड एवरी ट्रेड you have to take only 10% of risk maximum. 10% is also a maximum 10% in your each and every trade. The rule number 1 says that. Rule number 2, it's the most important rule in a trading: maintain risk reward ratio. It means what is the risk you are taking versus reward expecting in particular trade. Ideally, it should be at least 1:3 or 1:5. I will give you a simple hypothetical example. If you are buying one lot, say at present lot is 850 of Tata Steel, one lot of Tata Steel at the rate of 1400 rupees. Then in that case, your stop loss will be around 20 to 25 rupees, and your targeted profit should be around 80 to 100 rupees. So if you are maintaining your risk reward ratio, then I am sure that nobody can beat you. That's why, remember these lines. That's why I am always saying, even if I am wrong 8 times out of 10 times, even if I am wrong 8 times out of 10 times, still I am in the money, because the profit which I am generating, from my successful true trades is much, much, much higher than loss incurred in 8 trades. तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं करेंगे, तो एक ही गलत है, ओनली 1 रॉन्ग ट्रेड आपका 10 सही ट्रेड का पैसा लेके जाए। एंड आई नो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के साथ यही होता है। वो जो 5 से 10 ट्रेड में पैसा बनाते हैं, वो एक ही ट्रेड में, गलत ट्रेड में गंवा देते हैं। मैं आपको एक इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जब रिलायंस 1000 रुपये से चलने लगा, तो ट्रेडर्स एंटर हुए,
1000 का 1020 आता है तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है। अगेन 1100 आया, 1100 में अगेन एंट्री ली और 1150 आया, निकल गया। लेकिन 1200 में अगर उसने वापस एंट्री ली और रिलायंस का प्राइस 1000 हो गया तो वो अपना ट्रेड होल्ड करते हैं। कहने का मतलब यही है कि प्रॉफिट में आप 2%, 3%, 5% में निकल रहे हो और जब भी आपका ट्रेड अनफेवर हो जाता है तो आप वो ट्रेड को होल्ड करते हो, विच इज नॉट राइट। ट्रेडिंग इज जस्ट a maintaining of risk and reward ratio. Nobody can says that he is right 10 times out of 10 times. Even I am saying that I am not right. Even after my experience of last 20 years, my 5 trade is goes wrong out of 10 trade. 10 में से मेरे 5 ट्रेड गलत होने के बावजूद भी मैं बाकी के जो 5 ट्रेड सही होते हैं ना, उसमें इतना पैसा बनाते हूँ ना कि भाई अगेन मेरे दूसरे 50 ट्रेड भी फेल हो गए ना तो भी कोई इश्यू नहीं है। सो मेरे का कहने का मतलब इतना ही है कि आपको ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट रूल्स, फेमस स्लाइड, कीप ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और मैं तो यही बोलता हूं, रिस्क है तो इश्क है, स्टॉप लॉस है तो ट्रेडिंग है। फ्रेंड्स, दिस रूल कॉल्ड द फादर ऑफ ऑल द रूल्स। दिस इज द प्रोमिनेंट रूल्स व्हिच सेज दैट there must be strict stop loss. Strict, remember my words, strict stop loss in your each and every trade. The traders who doesn't put the stop loss in his trade, I can say never enter in the world of trading. Friend, stop loss ये वो ब्रह्मास्त्र है जो आपको कभी भी एडवर्स सिचुएशन में प्रोटेक्ट करके बचाएगा। Friends, whenever I am giving you simple example, whenever I am giving trading calls in my group, within next minutes, traders asking me, sir, what's the target? What's the target? My dear friend, it's not the target which is our hand, it is the stop loss which is in our hand. Targets are always revised. It depends upon the scenario of market, overall position of your stop, but stop loss is always fixed. जिसने भी अपनी ट्रेडिंग पोजीशन में स्टॉप लॉस नहीं रखा वो अल्टीमेटली एक बड़ा लॉस करके मार्केट से लाइफ टाइम आउट हो गया। सो आई एम 100% श्योर दैट अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो आपका लॉस के साथ मार्केट में से बाहर निकलना तय। एक और चीज जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स स्टॉप लॉस रखने के बाद करते हैं कि जैसे ही स्टॉप लॉस के पास में प्राइस आ जाता है, दे आर रिवाइजिंग, अरे यार मैं 1000 रुपये में रिलायंस बाय किया था, 980 हो गया, मेरा स्टॉप लॉस नजदीक आया, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अगेन ही रिवाइजिंग एट स्टॉप लॉस फ्रॉम 980 टू 970। जैसे ही 970 के पास प्राइस आता है, ही इज रिवाइजिंग 950। उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर आप अपनी स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाओगे तो वो कोई लॉजिक ही नहीं है उसका। अगर आपका स्टॉप लॉस के प्राइस के नजदीक आ जाता है आपका प्राइस, you have to exit at the stop loss level. और दूसरी एक चीज, कई बार फ्यूचर ऑन ऑप्शन सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं कि मार्केट इज ओपनिंग गैप अप और गैप डाउन। सपोज आज आपने टाटा स्टील 1400 में लिया है, योर स्टॉप लॉस इज 1% और मे बी 2%, सो मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ 28 रुपीज। इन द नेक्स्ट डे ओपनिंग टिस्को opens at 1350, you have no chance. In that case you have to exit at the opening price. अगर आपका स्टॉप लॉस जंप करके जाता है तो आपको सुबह खुलने के बाद कुछ भी नहीं सोचना है। 1350 पे मार्केट में टिस्को ओपन हो रहा है तो आपको उसको एग्जिट करना है। उसके बाद अगर 1340 भी आता है ना तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई 1340 आ गया, मैं एग्जिट नहीं हुआ। यू हैव टू एग्जिट at the opening price if your stop loss level is jump. And those traders who are maintaining strict stop loss in his trade, I am sure they will become a 100% successful traders, 100% successful traders. Next rules, aid in favor, subtract in unfavor. Build a pyramid for favorable positions only. What does this mean? This means that you have to add in your trading position
only in case of trade goes into your favor. आपको अगर मार्केट में अपनी ट्रेडिंग पोजीशन में एडिशन करना है तो वही ट्रेड में करना है जिसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है, नहीं कि लॉस मेकिंग ट्रेड में, जो हमेशा एक ट्रेडर्स करता आ रहा है। सिंपल एग्जांपल, आप HDFC बैंक 1400 रुपये में लोगे तो अगर 1380 आएगा तो आप एवरेज करोगे। ट्रेडिंग में वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आपको एवरेज करना है तो आप अपनी फेवर में एवरेज करो कि सपोज आपने 1400 रुपये में HDFC बैंक बाय किया है, शेयर प्राइस कम्स टू से अराउंड 1450, you can add it, your total average is 1425 and keep appropriate stop loss. अगेन आपका फेवर आ रहा है तो आप एडिशन करते जाओ, क्योंकि अगर फेवर में एडिशन करोगे तो जब भी मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगा आपका प्रॉफिट का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्योंकि अगर आपके पास एक लोट है, ऐड कर रहे हो तो 2 लोट होगा, 3 लोट होगा, तो योर प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइंग। लेकिन अनफेवर में आप एडिशन करोगे, योर लॉस इज मल्टीप्लाइंग। तो जनरली पीपल्स और ट्रेडर्स, मैंने तो 20 साल में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स देखे, 90% ट्रेडर्स आर एवरेजिंग देयर पोजीशन इन अनफेवर। नहीं, एवरेज नीचे आ जाएगा ना तो मार्केट जैसे ही ऊपर आ जाएगा हम लोग निकल जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो ये रूल्स 100% फॉलो करना है कि कभी भी अगर आप फेवर में एडिशन नहीं करो ना तो भी आपको अनफेवर में तो एडिशन नहीं करना है, क्योंकि कई लोगों का बस की बात नहीं है कि वो फेवर में एडिशन कर ले। उनके माइंड में यही रहता है, अरे यार भाव तो बढ़ गया है, मैं कैसे एवरेज कर सकता हूँ। बट दिस इज द राइट वे टू ट्रेड। हम लोग कभी भी पिछले 10 साल से मैंने कभी भी अनफेवर में एक ट्रेड में ऐड नहीं किया है। आई एम गिविंग यू लाइव एग्जांपल। आई हैव एंटर्ड इन द DLF, bought 10 lots at 284 with strict stop loss of 279, and then within few days price came around 300. Again I have added into my existing position. Again after 325 DLF has given a multi-year breakout. I have added at 333. 284 में मैंने लिया है, 300 में लिया है, 325 के ऊपर भी ऐड किया है, एंड टुडे आई हैव एडेड एट 355। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप फेवर में ऐड करते जाओगे और उसके बाद आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो रिवाइज करते जाना है, ताकि अगर मार्केट में कुछ भी हो तो आपका सर्टेन प्रॉफिट्स बुक हो जाए। मेरे कहने का मतलब यही है कि इफ यू वांट टू ऐड in your existing trading position, then you should add only in favor, not in unfavor. This is the golden rule. Make entry on anybody's call, but exit at your own. Those who become master in when to exit can surely become a successful trader. आप ट्रेडिंग में किसी की भी एडवाइस पे एंट्री कर सकते हो, लेकिन एग्जिट अगर आपको करना है तो आपके खुद के डिसीजन से ही एग्जिट करना पड़ेगा। आई विल गिव यू ए सिंपल एग्जांपल कि सपोज आपने इन्फोसिस का शेयर 1650 में बाय किया है विथ सो एंड सो स्टॉप लॉस। या तो मैंने आपको एडवाइस दी है कि आप इन्फोसिस 52 वीक हाई पे चल रहा है, आप बाय कर लो और इतना स्टॉप लॉस रखो, और सडनली कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि इन्फोसिस का शेयर्स गिरने लगता है, तो एट दैट टाइम आपको एग्जिट ही करना है, क्योंकि आपको उस टाइम मेरे को रिंग नहीं करना है कि जीतू भाई आपने मेरे को इन्फोसिस दिलवाया था, मैं क्या करूं। जीतू भाई अपने ट्रेड में बिजी होगी, वो अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे, नहीं को आपको बताने आएंगे। सो इट्स क्लियर कट रूल्स दैट एग्जिट के लिए आपको खुद का डिसीजन चाहिए। एंट्री यू कैन टेक ऑन एनीबॉडीज कॉल। आपको एक मैं इसके बारे में महाभारत का एग्जांपल देता हूं। इन द महाभारत अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में जा रहे थे, he has 7 stages, he knows exit door of 6 stages। 6 स्टेज में उसको एग्जिट डोर पता था। What happens? He is the winner। लेकिन जब 7वां स्टेज आया और उसको एग्जिट नहीं पता था, what happens? He died। इन ट्रेडिंग जब तक आपको एग्जिट आता है तब तक ही आप मार्केट में टिके हुए रहोगे। जब भी आपने
एग्जिट डोर्स पता नहीं है और एग्जिट नहीं कर पा रहे, you will be stuck up in the wrong side. So always try to become a exit at your own. Rule number 6 says that it is not necessary to trade each and every day. Sometimes no trade is the best trade. My dear friends, it's our habit to trade every day and if possible every moment. That's not right, because many times we observe that market is going up down within every few minutes. We don't know whether the market is going up or down, so we don't know whether to be go long or short in the market. In that case, it's better to stay away from the market. Remember these lines. ये जरूरी नहीं है कि हर दिन हर पल ट्रेड करो, ये जरूरी नहीं है कि हर दिन हर पल ट्रेड करो। जब भी स्क्रीन देख के आपको ये समझ में आए कि आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जब भी स्क्रीन देख के ये समझ में आए कि आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ट्रेड करना छोड़ दो और एंजॉय विथ फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। जिसने स्क्रीन के सामने बैठने भी ट्रेड नहीं करने की मास्टरी बना ली, ऐसे हमारा क्या होता है कि स्क्रीन के सामने बैठते आते ही फटाफट ये चल रहा है, वो चल रहा है, इसको ले लो, इसको बेच दो, इसको ले लो, इसको बेच दो। पता नहीं हमको कितना ट्रेड करना है, और कई बार तो पता ही नहीं होता, मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाता है, 50 पॉइंट नीचे जाता है, 50 पॉइंट ऊपर जाता है। वी डोंट नो कि क्या हो रहा है मार्केट में। हमको इतना पता चलता है कि मार्केट में समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इतनी समझ नहीं आती है कि जब मार्केट में समझ नहीं आ रहा है तो मार्केट को छोड़ दो, जस्ट रिलैक्स, एंजॉय योरसेल्फ। Friends, trade in quantity when there is a clear-cut trend with low volatility. At least once in a week or month, you get clear-cut trend. Trade with a volumes on this day because trend is your best friend. जब भी जो लोग भी एक्टिव ट्रेडर्स है, उसको पता है कि जब भी हम स्क्रीन के सामने बैठ के ऑब्जर्व करते हैं कि कई बार, जैसे टुडेस एग्जांपल, आई विल गिव यू ए लाइव एग्जांपल टुडेस, कि आज सुबह मार्केट ओपन होने के बाद ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रहा था विदाउट एनी जिगजैग। सुबह मार्केट ओपन होने के बाद एंड में उसने ऑल टाइम हाई बनाया, तब तक मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, तो मार्केट में क्लियर कट ट्रेंड था। तो उस दिन हमको वो मार्केट में हाई क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि वी नो टुडे ट्रेंड इज गोइंग अप 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 एंड अप। तो उस दिन आप अगर कोई भी चीज आप बाय करके जो अच्छी है वो ले लोगे तो आपका ट्रेड फेवर में ही जाने वाला है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। रिमेंबर दिस लाइन्स, इट्स इजी टू स्विम विथ टाइड देन अगेंस्ट इट, बिकॉज इवन इफ वी आर रॉन्ग वी विल रीच द डेस्टिनेशन। आपको कभी भी मार्केट में ट्रेड करना है तो ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करो। ट्रेंड के साथ अगर आपने ट्रेड कर लिया तो अगर आपने गलत पोजीशन भी ले ली है तो भी आप राइट डायरेक्शन में चले जाओगे। आज किसी ने कोई भी स्टॉक नहीं भी चल रहा होता और वो भी लिया होता तो भी उसका एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज निफ्टी टुडे इज ऑलमोस्ट अप अबाउट मोर देन 200 पॉइंट्स, तो मार्केट में विजिबल था, ट्रेंड विजिबल था। तो जो भी स्मार्ट ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं। हमारा क्या होता है जनरली मोस्ट ट्रेडर का, दे आर टेकिंग कॉन्ट्रेरियन व्यू। अरे भैया सही दिशा में मार्केट जा रहा है तब भी तुम कॉन्ट्रेरियन व्यू लेगे तो कैसे पैसा बनेगा। सो ऑलवेज बी विथ ट्रेंड एंड रिमेंबर वन लाइन ओनली, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। डू नॉट टेक बिग पोजिशंस बिफोर ए बिग इवेंट। मार्केट का ये एक थंब रूल्स है कि कभी भी आपको जब भी नेक्स्ट डे बड़ा इवेंट, जस्ट लाइक ए क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, इंटरेस्ट रेट डिसीजन, इलेक्शन आउटकम, ये जो सब इवेंट्स है वो इवेंट्स के बाद मार्केट आइदर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है। सो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टेक रिस्क एट दैट टाइम, बिकॉज वी डोंट नो whether the market is going up or going down next day. So it's always better to not to take position, and even if
you want to take any position, you have to take through options only. Because in the options, you know your loss is, whenever you are buying the options, your loss is limited to the extent of premium paid. तो अगर आपको इवेंट के टाइम, वैसे मैं तो एडवाइस यही करता हूँ सब लोगों को कि कभी भी बड़ा इवेंट्स होता है तो मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर अप करके आराम से इवेंट्स अनफोल्ड होने की राह देखता हूँ, क्योंकि आई डोंट नो वेदर मार्केट इज गोइंग और गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। फिर भी कई लोगों का क्या होता है कि वो बोलते नहीं, वी आर द रिस्कियर ट्रेडर। लेकिन मार्केट में रिस्क लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, और उस टाइम आपको केवल ऑप्शंस में ही करना है ट्रेड। देयर आर टू टाइप ऑफ वे टू ट्रेड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स, वन इन फ्यूचर, वन इन ऑप्शंस। ऑप्शंस में अगर आप बाय करते हो ऑप्शंस, तो योर लॉस इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम पेड बाय यू। तो इन केस इवन इफ योर ट्रेड गोज रॉन्ग, योर लॉस इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम पेड ऑन। तो ये एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, ट्रेड कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, पोजीशन कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए। ऑलवेज फॉलो दीज रूल्स so far as possible and don't take position before a big event. ये रूल्स जो मैं स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूं इज माय फेवरेट रूल्स। डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट, इट इज इट्स ओन। मेरे को लग रहा है कि मार्केट 16,000 हो गया है, यहां से ऊपर नहीं जाएगा, या तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट 14,000 हो गया है, यहां से नीचे नहीं जा रहा है। अरे मेरे भाई, हम लोग यही सोचते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जाम कोरोना के टाइम का देता हूँ। कोरोना के टाइम बिफोर कोविड कम्स टू इंडिया, मार्केट उससे पहले गिरने का शुरू हो गया था। निफ्टी हैज फॉलन फ्रॉम 12,300 to 11,000। एट दैट टाइम ओनली 5 to 2 केसेस ऑफ कोविड इन इंडिया। तो हमको क्या लगा कि मार्केट तो इतना करेक्ट हो गया है, ओवरऑल ट्रेंड अप है, तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, और मैंने बाय कर लिया। एंड सी व्हाट हैपेंस, मार्केट हैज फॉलन अप टू 75। और उसके बाद जब कोविड के केस 50,000, 70,000, 80,000 ऊपर गया और निफ्टी रिकवर होके 9,500 आई, एट दैट टाइम एवरीबडी सेज, मेरे को लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस ही नहीं है। अरे भाई, तेरे को लग रहा है, वो तेरे घर पे भी नहीं हो रहा है, मार्केट में कहां से होगा? Whatever we think is not going to happen in the stock market. इसीलिए मार्केट को टाइम करना छोड़ दो। ये मार्केट में जितने भी लोग आए, ये मार्केट में जितने भी लोग आए और मार्केट को टाइम करने गए, उसका खुद का टाइम खत्म हो गया। यहाँ पे तो जो चल रहा है उसके साथ बैठो। मार्केट आज 16,000 है, मैं बाइंग साइड ही पोजीशन बना रहा हूं। क्यों? कि मार्केट का ट्रेंड अप है। आई डोंट नो कहां तक जाएगा, कहां से रिवर्सल होगा, लेकिन जिस दिन रिवर्सल होगा तब भी मैं मंदी खेलूंगा। यहां से अभी 16,000 में मंदी खेलने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हाँ, 15,000 हो गया यहां से, तब मंदी की साइड बैठ जाएंगे ना। अपने को मार्केट को बिल्कुल टाइम नहीं करना है। मार्केट जो डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन, मार्केट नोस हिज टाइम। So don't try to time the market. It has its own way. We don't know where it is stopped. Do not change your views only because of news and rumors in the market. लोग क्या करते हैं? टीवी देख के अपना व्यूज बदलते हैं। अगर टीवी में आप रेगुलर सामने बैठ के ट्रेडिंग करके पैसा बना लोगे, तो मेरे ख्याल से कोई भी ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाएगा ही नहीं। I will give you my example. Since last 1.5 years, मैंने टीवी ऑन नहीं की है, कोई बिजनेस चैनल नहीं देखी। Although most of the business channels में मेरे फ्रेंड्स है, whether it is CNBC आवाज, ET Now and so on। क्योंकि मेरा फोकस जो है वो मैंने जो ट्रेड किया है उसके ऊपर ही है, मेरे स्क्रीन के ऊपर ही। और मेरे जो ट्रेडर्स है वो मैं किसी के न्यूज या रूमर्स के वजह से उसमें मेरा व्यूज नहीं बदलूंगा, until and unless price is moving in that direction. Most of the people
are taking position on the basis of news or on the basis of rumors in the market. They don't know anything. It is stupid trade. आपको ऐसे ट्रेड करनी ही नहीं है. अगर ऐसे ट्रेड करने जाओगे तो आपका पैसा कभी भी मार्केट में नहीं बनेगा. Always try to find out the stock which is at high, which is at low, where is technical breakout, what's the market trend. ये सब चीज देखने के बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना है. So don't take any decision on the basis of news or rumor in the market. Do not depend on anyone. Please always try to take your own decisions. हमारे गुजराती में कहावत है, गुजराती समझते होंगे वो समझ जाएंगे, धंधो पोतानी बुद्धि थी थाय, पारकी बुद्धि थी नहीं. बिजनेस कैन बी डन बाय योर ओन इंटेलिजेंस. अगर सामने वाला आपको बताएगा कि ऐसे बिजनेस करना है और आप वो बिजनेस करके सक्सेसफुल हो जाओगे तो वो कोई बात ही नहीं. 100% you are wrong. So always try to take your own decision and always try to take decisions. Whether you are right or wrong, time will tell. But it's up to you that you have to take decision. जब तक आप मार्केट में अपना डिसीजन खुद नहीं लोगे तब तक आई एम श्योर आप एक अच्छे और सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे. बिकॉज एवरी टाइम यू आर डिपेंडिंग ऑन एनीवन. वो आपको कितने टाइम बताएगा. और उसमें भी अगर आपका ट्रेड गलत हो गया उसकी एडवाइस लेने जाओगे. जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं कि सर आपने बोला था कि HDFC बैंक 1500 में बाय करने का है, फिर 1480 का स्टॉप लॉस आया, हम लोग नहीं निकले. HDFC बैंक तो बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग रन में ऊपर ही जाने वाला है, तो अभी क्या करें. अरे भाई अभी क्या करें नहीं, उसी टाइम तेरे को खुद का डिसीजन लेके निकलने का था. मैं तो कब का निकल गया, अभी तो शॉर्ट में खड़ा हूं. और कई बार तो मैं बोलता हूं आई हैव कन्वर्टेड माय लॉन्ग पोजीशन इनटू शॉर्ट पोजीशन. मैंने पहले पैसा उसमें तेजी करके बनाया था, आज मंदी करके भी बना रहा हूं क्योंकि स्टॉक नहीं चल रहा है. सो व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपको एक सक्सेसफुल अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको अपने डिसीजन खुद ही लेने पड़ेंगे. किसी के डिसीजन पे, किसी के इंटेलिजेंस पे आप पैसा नहीं बना पाओगे. लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक. मेक श्योर दैट you do not repeat it next time. मित्रों, कोई भी ट्रेडर अगर मार्केट में ये कहे कि मैं मिस्टेक्स नहीं करता, इज 100% रॉन्ग. 100% सवाल ही नहीं है. आज 20 साल का मेरा इक्विटी FNO में एक्सपीरियंस के बाद भी मेरे से मिस्टेक्स. बट वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स. हमको पता भी चलता है कि हमने यहाँ पे गलती कर दी, उसकी वजह से हमको लॉस हुआ, लेकिन वही गलतियां हम हर बार बार दोहराते रहते. मैंने रूल्स बताया आपको कि आपको कभी भी अनफेवर में एवरेज नहीं करना है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर एवरेजिंग इन अनफेवर. दे नो दैट दे आर एवरेजिंग इन देयर अनफेवर ट्रेड. आपको वो नहीं करना है. आपको वो अपना जो गलत डिसीजन है उसको रिपीट नहीं करना है. डिसीजंस लेंगे, गलतियां होंगी, लेकिन जब तक आप गलती को सुधार नहीं पाओगे. हमारे स्टॉक मार्केट में कहावत है कि यहाँ पे मिस्टेक करना अलाउड है. इन द स्टॉक मार्केट मिस्टेक्स इज अलाउड, बट रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स इज 100% नॉट अलाउड. क्योंकि जो आदमी गलतियां रिपीट करेगा वो कभी भी अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाएगा. सो ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट इट नेक्स्ट टाइम. Never get attached with stock with positive or negative bias in your mind. Trade with neutral bias. हमने अभी रिसेंटली हर्षद मेहता का जो स्कैम वाली सीरीज देखी, उसका ये डायलॉग मेरा फेवरेट डायलॉग है. इमोशन में इंसान हमेशा गलती करता है. और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, आई कैन से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेडिंग को माइंड में आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव बायस के साथ करते हैं. भैया अपने को पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है. वी हैव टू ट्रेड विथ न्यूट्रल बायस. अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, आप बाय करके ट्रेड करो. स्टॉक नीचे जा रहा है, आप सेल करके ट्रेड करो. आई विल गिवन यू सिंपल एग्जांपल ऑफ JP एसोसिएट्स शेयर. लास्ट बुल रन था 10 साल पहले, जब लास्ट बुल रन, उसमें JP एसोसिएट्स ने कुछ 500 रुपीज का हाई बनाया था. तो हमने 300 से 500 तक JP एसोसिएट्स के शेयर को फ्यूचर्स
सेगमेंट में बाय करके ट्रेड किया था, और उसके बाद ये स्टॉक जब 50 के नीचे गिर गया ना, तो उस टाइम हम 50 में शॉर्ट करके ट्रेड कर रहे थे। लोग बोल रहे 50 में क्या कमाने का, मतलब 50 में 50 ही कमाने का है। सो ऑलवेज ट्रेड विथ न्यूट्रल, अपने को स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके दिमाग में आपने एक चीज बिठा ली कि रिलायंस यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो आप कभी भी रिलायंस में कॉन्ट्रा मतलब सेल साइड का ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। अपने को किसी भी ट्रेड में पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, जो डायरेक्शन में ट्रेड हो रहा है वही डायरेक्शन में जाओ। आपका माइंड न्यूट्रल होना चाहिए, दैट्स ऑल। फिर अगर मार्केट ऊपर जाएगी, आप मार्केट में बाय, जैसे अभी आज 16,000 का हाई एक बेंचमार्क लेवल निफ्टी ने क्रॉस किया, सो नाउ निफ्टी इज इन अनचार्टेड टेरिटरी। तो अपने को उसी हिसाब से स्टॉक में जो भी स्टॉक्स चल रहे हैं वो स्टॉक में बाय करके करना है, और कोई स्टॉक सपोज नहीं चल रहा है तो उसमें नेगेटिव व्यू है तो उसको सेल करके करना है, बट ट्रेड विथ न्यूट्रल बायस, दैट्स ऑल। फॉलो द प्राइस एंड नॉट द स्टॉक्स। प्राइस इज गॉड, भाव इज भगवान। मैंने अब भी जैसे आपको बताया जेपी एसोसिएट्स, वैसे यूनिटेक का बताऊं। स्टॉक मार्केट में आप किसी के भी एडवाइस पे एंटर करो, लेकिन प्राइस जो बता रहे हैं वही सही है। सपोज आज मैंने आपको बताया कि मेरे को टाटा पावर लेने जैसा लग रहा है, यहाँ से वो 250 तक जाएगा, आपने 134 में टाटा पावर का शेयर बाय कर लिया। आई एम गिविंग यू ओनली हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इट्स नॉट माय कॉल कि भी टाटा पावर आपने 134 में ले लिया, आपको ट्रेंड अच्छा लग रहा था और टाटा पावर ऊपर जा रहा है, यू कैन होल्ड इट, क्योंकि भाव आपको दिखा रहा है, प्राइस दिखा रहा है। लेकिन अगर टाटा पावर का शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है, ऐसे 130 से नीचे जा रहा है, तो आपको उसमें कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि यू आर नॉट ए इन्वेस्टर, यू आर ए ट्रेडर। आपको अपनी पोजीशन 2% 2.5% नीचे स्क्वायर अप ही करनी। किसी का भी सुनो, लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो भाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो सब कुछ बता रहे हैं। कोई भी स्टॉक में अगर नेगेटिव आने वाला है तो उसका प्राइस उसको स्क्रीन के ऊपर पहले से ही दिखाएगा। अगर कुछ भी पॉजिटिव होने वाला है तो भी वो पहले से ही आपको बताएगा। मार्केट में न्यूज बाद में आएंगे, लेकिन पहले प्राइस आपको एक्शन दिखा देंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्राइस एक्शन, बिकॉज प्राइस इज गॉड, भाव इज भगवान। किसी भी प्राइस पे आई एम ऑलवेज सेइंग बाय ऑन 52 वीक हाई, सेल ऑन 52 वीक लो। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना है, जो भी स्टॉक 52 वीक हाई के ऊपर टेक्निकल ब्रेकआउट देता है, आप उसमें ही पैसा बना पाओगे। ये 3 साल में आप देखो जितने भी स्टॉक्स ने अपना नया हाई बनाया है, दे आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग न्यू हाइज। सो ऑलवेज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्राइस एक्शन, एंड one rule, remember, price is God, bhav is Bhagwan. Trade the stock just with and affairs with them, don't marry them. मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो जब तक जो चीज चले उसके साथ में बैठो। रिलायंस जब 1000 से कोरोना, आफ्टर कोरोना रिसीडिंग 1000 से 2000 आया, तब तक हमने रिलायंस में लेके ही ट्रेड किया था, लेकिन रिलायंस के साथ शादी नहीं की थी। अभी 2100 से पिछले 3 महीने से रिलायंस नहीं चल रहा है, लोग रिलायंस लेके ही बैठे। ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम दे रहा हूँ, कोई आप उसको मेरी टिप्स वगैरह मत समझना। भाई रिलायंस 2100 के लेके बैठेंगे, भाई रिलायंस ऊपर, भाई जिस दिन रिलायंस ऊपर जाएगा जिस दिन रिलायंस से बैठेंगे। आज रिलायंस नहीं चल रहा है, टाटा स्टील चल रहा है, टाटा स्टील के साथ बैठ लो, उसमें बाय करके ट्रेड कर लो। परसों इन्फोसिस चल रहा है, जिसकी शादी हो उसकी बारात में जाओ, सिंपल रूल। जिसकी शादी अगर जीतू भाई की हो रही है तो आप समीर भाई की बारात में नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहां पे जाओगे कुछ खाना पीना नहीं मिलेगा। आपको जीतू भाई के साथ ही बैठना है, और जीतू भाई की शादी खत्म हो गई, चलो दूसरे किसी की शादी और उसके साथ बैठ जाओ। तो ट्रेडर्स को अगर पैसा बनाना है, स्टॉक के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जब तक वो चला उसके साथ बैठ गए, जिस दिन वो नहीं चला उसको छोड़ दिया। हमने कहा उससे शादी की, छोड़ दो उसको। Chart is the consequences of price action, so concentrate always on price actions. हमने मोस्टली देखा, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर टेकिंग देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स। चार्ट्स
के बेस पे आप डिसीजंस ले सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि आपको चार्ट नहीं देखना है, लेकिन चार्ट कहाँ से बनता है? हाउ चार्ट इज प्रिपेयर्ड? ओनली आफ्टर प्राइस एक्शन। अगर कोई भी स्टॉक कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है तो उसका चार्ट वही दिखाएगा कि यहाँ से ये बाय मोड में ही है, और किसी भी स्टॉक अगर कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है तो वो उसका चार्ट वही बताएगा। सो ऑलवेज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्राइस एक्शंस, क्योंकि अगर प्राइस एक्शंस आप कैचअप कर लेते हो ना तो चार्ट से पहले आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। चार्ट के बाद तो कितने पब्लिक्स एंटर होगी, सो मेनी ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स ओनली। लेकिन अगर आपने चार्ट्स पहले से क्या बनने वाला है वो प्राइस एक्शंस के ऊपर देख लिया, देन यू विल बिकम द मास्टर माइंड ट्रेडर। और आपका सक्सेसफुल होने का या तो आपका पैसा बनाने का जो है ना वो चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि स्क्रीन को कॉन्स्टेंटली वॉच करते हैं कि भाई ये स्टॉक मार्केट गिर रहा है फिर भी ये स्टॉक कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग गुड इन दैट स्टॉक, उसका चार्ट अच्छा ही बनेगा। तो जब चार्ट एक लेवल के ऊपर बनेगा तब तो सब पीपल सेंटर्स होंगे, सब ट्रेडर्स, तो उस टाइम उससे पहले हमने एंट्री लेके अपना पैसा बनाने का शुरू कर दिया है। सो चार्ट इज बेनिफिशियल, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट बिफोर दैट try to concentrate on price action. Don't trade in high beta stock during volatility. Chances of you are getting stuck is very high unless you are a fast mover. What is high beta stock? High beta stock is that stock which are moving in a high range. Say for example, Aibul Housing. उसकी डेली रेंज क्या होती है? 15 to 20 रुपीस समटाइम्स। सो 6 से 7% की हाई रेंज है। तो हाई बीटा स्टॉक है, अगर मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है मतलब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, इन दैट केस इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू ट्रेड इन हाई बीटा स्टॉक्स। तो उस टाइम अपने को अगर ट्रेड भी करना है लो बेटा मतलब क्या है? जैसे HDFC बैंक है, HDFC है, रिलायंस है, देयर डेली रेंज इज अप्रोक्सीमेटली इन बिटवीन 1-2%। तो उसमें आप स्टॉप लॉस लगा के काम भी कर सकते हो। लेकिन जो स्टॉक्स हाई बीटा है और मूवमेंट इतनी ज्यादा है, डेली मूवमेंट, इवन गैप अप गैप डाउन की मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है, तो उसमें अगर वोलेटाइल टाइम के साथ आप ट्रेड करोगे तो व्हेनेवर देयर इज वोलेटिलिटी इन द मार्केट, ऑलवेज वॉच इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन व्हाट इज द वोलेटिलिटी इंडेक्स साइज। जब भी ये कोरोना आया तब वोलेटिलिटी इंडेक्स गोज फ्रॉम 14 टू आई थिंक अराउंड 80, 6 times volatility index. Now today VIX volatility index is quoting around 13 again. तो जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी इंडेक्स लो रहता है इट मींस मार्केट इज एट स्टेबल मूड और यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा रहेगा। मार्केट जब भी गिरने वाला होता है उससे पहले विक्स ऊपर नीचे हो जाती है। तो जब भी आप विक्स को वॉच करेंगे ना आपको पता चलेगा वेदर द मार्केट इज वोलेटाइल और नॉट। सो ऑलवेज ट्राई टू सी what is going on in VIX volatility index। और जब भी वोलेटिलिटी ज्यादा हो तब कभी भी आपको हाई बीटा स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। ऑलवेज ट्रेड थ्रू ऑप्शंस बिफोर ए बिग इवेंट। आई ऑलरेडी मेंशन इन बिफोर फ्यू स्लाइड्स बैक कि कभी भी कोई बड़ा इवेंट हो तो आपको ट्रेड नहीं करना है। इट इज बेटर नॉट टू ट्रेड बिफोर बिग इवेंट, एंड इवन इफ यू वांट टू ट्रेड then trade in options only, and that is too only in buyer side। ऑप्शन में भी आपको बाय करके सेल करना है whenever there is a big event, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो दूसरे दिन मार्केट आइदर बिग गैप अप और बिग गैप डाउन खुलेगा, यू विल बी स्टक अप। फ्रेंड्स, अभी मैं जो आपको चीज बताने जा रहा हूं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग विद ओपन इंटरेस्ट व्यू, मैं पिछले 15 साल से आई एम गिविंग यू लाइव एग्जांपल ऑफ माइन। पिछले 15 साल से मैं केवल ये 4 ही चीज स्क्रीन पे देखता हूं, ओनली 4 थिंग। दोज हु आर ट्रेडर्स, आप ये चीज समझ गए ना तो समझ लो आप 90% सक्सेसफुल ट्रेडर हो गए। 90% आई कैन से। देयर आर 4 टाइप ऑफ सिचुएशंस इन द मार्केट। लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप व्हाट? राइज इन प्राइस अलोंग विथ राइज इन ओपन इंटरेस्ट। भाव ऊपर जा रहा है साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है तो आपको बाय करके ही ट्रेड करना है। लॉन्ग बिल्डअप मतलब कोई भी अच्छे ट्रेडर्स इसमें लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं। फ्यूचर और ऑप्शंस में लॉन्ग पोजीशन मतलब पहले बाय करो,
बाद में सेल करो। तो whenever there is a long build up, that means rise in price along with rise in open interest, it's called long build up. Again, reverse scenario, short build up, fall in price along with rise in open interest. जब भी कोई भी स्टॉक कंसिस्टेंट खुलने के बाद नीचे जा रहा है और उसमें ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, तो आपको वो स्टॉक को शॉर्ट ही करना है। रिमेंबर, इट्स इजी टू ट्रेड इन लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप में अगर आप प्राइस नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर, आपको कुछ भी, वी कैन लेटर ऑन डिस्कस व्हाट इज द ओपन इंटरेस्ट, उतना जानने की जरूरत नहीं। आप स्क्रीन पे देख लो, कल से आप देखना शुरू कर देना, जिस स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, और जिसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है, दैट मीन्स शॉर्ट बिल्डअप, समवन इज टेकिंग शॉर्ट पोजीशन इन दैट स्टॉक, तो उसमें आपको पहले सेल ही करना है। Then again third one is long unwinding. Long unwinding means fall in price along with fall in open interest. जब भी जिसने भी लॉन्ग किया है वो अनवाइंड करने मार्केट में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में प्रेशर आता है, तो वो स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है। What? Why? Because fall in price is along with fall in open interest. तो जो लॉन्ग्स थे वो अनवाइंड कर रहे हैं, इसको लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग। आज आपने देखा 16,000 के ऊपर 15 से 20 मिनट निफ्टी टिका, उसके बाद डायरेक्ट 150 पॉइंट की मूवमेंट आ गई। व्हाई? बिकॉज देयर इज शॉर्ट कवरिंग इन द मार्केट, राइज इन प्राइस अलोंग विद फॉल इन ओपन इंटरेस्ट। तो ये चार सिचुएशन ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होती है। मैं पिछला 15 साल से ये सिचुएशन फॉलो करता हूं। इन द मॉर्निंग जब भी मार्केट खुलता है, आई एम वॉचिंग ओनली ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस। कोई भी स्टॉक अगर 52 वीक हाई क्रॉस करके with open interest ऊपर जा रहा है, it clearly indicates that stocks is in a good buying mode. आपको वो लेके बाद में बेचने का है। और अभी मार्केट ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी मार्केट गिरता है तो जो भी स्टॉक में with rise in open interest price is falling, तो आप उसमें उस टाइम शॉर्ट करके ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू सेल देन बाय इट। लेकिन आपको केवल ओपन इंटरेस्ट, अगर आप समझ गए व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट, ये मैं डिस्क्राइब करने जाऊंगा यहाँ पे, तो उसमें बहुत महीना लग जाएंगे। आपको केवल स्क्रीन के ऊपर या मनी कंट्रोल या व्हाटएवर सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, वही चेक करना है वेदर स्टॉक इज गोइंग अप विथ ओपन इंटरेस्ट और गोइंग डाउन विथ ओपन इंटरेस्ट, उसके ऊपर से ही आपको मिल जाएंगे। इवन ऑन 6th morning in WRC, I have a live trading session, first time in the history of WRC. We are going live with live trading session, morning 9 to 10:15। उस टाइम मैं आपको सब चीज एक्चुअल में लाइव मार्केट के साथ बताऊंगा कि देखो मैंने ये ट्रेड किया और यहाँ ये ट्रेड में मैंने कैसे पैसा बनाया। Since last 15 year I am concentrating only on open interest। ये चार चीज जिसको समझ में आ गई ना, समझ लो उसने मार्केट में कमाना शुरू कर दिया। Don't sell options unless you are mastermind trader। ऑप्शन स्मार्ट ट्रेडर्स ही बेच सकते हैं। दे आर टेकिंग सो मेनी पॉइंट्स कंसिडरिंग दैट कि मेरे पास डिलीवरी है, उसके सामने मैं ऑप्शंस बेच रहा हूं, मैंने एफएनओ में बाय किया है, उसके सामने मैं ऑप्शंस बेच रहा हूं। तो ऑप्शंस बेचने में क्या है कि योर अर्निंग इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, बट इन केस इफ यू आर नॉट maintaining proper stop loss, then your loss is unlimited। So unless and until you are a mastermind traders or professional traders, option sell करने में बहुत ध्यान रखना है। FIA is always doing option selling, we are majority of time doing option selling, क्योंकि हमको ये सब चीज का पता है कि भी मैंने आज HDFC में सपोज पोजीशन ली है, आई नो कि HDFC की रेंज मेरे को यही लग रही है, तो वो रेंज में अगर हम ऑप्शन सेल्स करेंगे तो ऑप्शन सेलिंग में दो चीज होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी। जैसे ही दिन निकलते जाएंगे ना, एक्सपायरी नजदीक होती जाएगी, ऑप्शंस का प्रीमियम कम होता जाएगा। तो वो जो प्रीमियम कमाना है वो हम मार्केट में कौन सा स्टॉक में क्या मूवमेंट आ रही है उसके बेस पे डिसीजन। लेकिन नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए या इनिशियल टाइम है जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो शुरू में, तब आपको कभी भी ऑप्शन सेल नहीं करना है, बिकॉज अगर एक भी चीज में आप रॉन्ग हो गए आपका अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। मार्केट इज लाइक ए टेस्ट मैच, यू हैव टू फील्ड फॉर द होल डे बट गेट
only few chances of catch during the market. Take that. बस यही है क्रिकेट मैच और स्टॉक मार्केट. मोस्ट ऑफ द रूल्स आर सेम. अगर सपोज आप टेस्ट मैच में खेल रहे हो और आप स्लिप में फील्डिंग कर रहे हो, पूरे दिन आप फील्डिंग तो करना पड़ेगा क्योंकि यू डोंट नो व्हेन द कैच कम्स. तो पूरे दिन आप फील्डिंग करोगे और जब भी कैच आएगा तभी आप कैच लोगे. वैसे ही मार्केट में आपको इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन फ्रॉम 9:15 इन द मॉर्निंग टू 3:30 इन द आफ्टरनून आपको सामने बैठना है. वी डोंट नो व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स. कब अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगी पता नहीं है, लेकिन अगर हम मार्केट में बैठेंगे ही नहीं तो अपॉर्चुनिटी आने का सवाल ही नहीं. सो यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, और जब भी आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिले तब आपको वो अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में कन्वर्ट करना है. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको 10 मिनट मार्केट में बैठ गए, चलो यहाँ से कुछ निकाल ले, ऐसे नहीं होता है. आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट मार्केट पे करना रहता है, स्क्रीन के सामने बैठने पड़ता है. सिंस लास्ट 20 years I am in front of screen from morning 9:15 to 3:30. उस टाइम आप बाकी के सब काम साइड में रखने हैं. अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको मार्केट में सामने बैठना है. और अगेन रिमेंबर अर्लियर रूल्स के सामने बैठने के बाद भी जब तक कैच नहीं आता है तब तक कोई डाइव नहीं लगाना है. अगर कैच नहीं आएगा और आप डाइव लगाओगे तो गिर ही जाओगे. तो आपको सामने बैठ के अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है. एंड व्हेनेवर राइट अपॉर्चुनिटी कम्स यू हैव टू ग्रैब इट. ट्राई टू कन्वर्ट एवरी अपॉर्चुनिटीज इन योर फेवर. आई ऑलरेडी सेड कि भाई आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको अपने फेवर में कन्वर्ट करना है. बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज. इट्स अ थंब रूल इन द इक्विटी मार्केट दैट ऑलवेज बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज. सपोज मार्केट में रूमर्स चल रही है कि रिलायंस में बोनस आने वाला है, इसकी एजीएम आ रही है नजदीक, उसमें बोनस, तो उस टाइम प्राइस एक्शंस मार्केट में ऊपर जा रहे हैं तो उस टाइम आप बाय कर लोगे. लेकिन एक्चुअल में जब बोनस आ जाता है उसके बाद आप सोचने लगोगे अरे यार वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली 1:1 बोनस और रिलायंस ने 1 का 3 बोनस दे दिया, तो अभी तो मार्केट ऊपर ही जाएगा. और मार्केट ऊपर नहीं जाता मतलब रिलायंस का शेयर ऊपर नहीं जा रहा है. सो एक बार न्यूज मार्केट में आ जाता है फिर वो न्यूज की वैल्यू कुछ नहीं रहती. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. तो जब भी आप कोई भी रूमर्स के बेस पे अगर डिसीजंस लेते हो तो आपको न्यूज आने के टाइम उसमें एग्जिट करना है. बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज, दैट्स ऑल. डू नॉट पैनिक इन अनफेवरेबल सिचुएशन. फ्रेश माइंड इज अटमोस्ट नेसेसरी टू ट्रेड इन द मार्केट. जब भी आपका ट्रेडिंग में कोई बड़ा लॉस हो जाए इट्स ऑब्वियस दैट आपका दिमाग ठिकाने नहीं होगा. तो उस टाइम आपको कोई भी पैनिक नहीं करना है या डिसीजंस मतलब एवॉइड करना है मार्केट को. क्योंकि जब तक आपका दिमाग सही डायरेक्शन में सोचने के लिए रेडी नहीं है तब तक आप ट्रेड करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है. मार्केट में ट्रेडिंग करना मतलब 100% डिवोशन, 100% माइंड अटेंशन ऑन मार्केट. कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कुछ गलतियों की वजह से हमारा लॉस हो जाता है, तो उस टाइम मार्केट को साइड में रख के हमने क्या गलती की थी वो गलती बार बार नहीं हो पाए या नेक्स्ट बार नहीं हो पाए वो ध्यान में रख के मार्केट्स में से थोड़ा टाइम आउट रख के सोचना है. और जब भी अपना माइंड फ्रेश हो जाए उसके बाद ही दोज हु आर नॉट इन पोजीशन टू टेक द डिसीजन प्लीज डोंट टेक द डिसीजन. जब भी आप डिसीजन लेने के लिए रेडी हो, आपका माइंड तैयार हो, तभी आपको डिसीजन लेना है. अदरवाइज stay away from the market during that time. Take more risk when you are in a profit, less risk when you are in loss. मैंने सबसे पहले रूल में आपको बताया था कि भाई whenever you are trading for the first time take only 10% risk in your first trade. कहने का, और अगर आपका वो ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो अगेन डिवाइड योर कैपिटल प्लस प्रॉफिट बाय 10. इसका कहने का मतलब वही था कि अगर आपका ट्रेड फेवर हो गया तो आप एक्स्ट्रा रिस्क लोगे और अगर आपका ट्रेड अनफेवर हो गया तो आप अपने रिस्क कम करोगे. सो ये मार्केट में जब भी आपकी नुकसानी हो, लॉस हो, तब कभी भी रिस्क ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि आपको पता है यू आर ऑन ए रॉन्ग डायरेक्शन. कुछ ना कुछ आपने गलत किया होगा तभी आपका लॉस हुआ होगा.
तो उस टाइम आपको रिस्क कम करना है। लेकिन जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में हो उस टाइम आपको रिस्क ज्यादा लेना है। हम लोग यही करते हैं कि जिस दिन मंडे को हमारा पैसा बन जाता है अच्छा, वी आर टेकिंग हायर एंड हायर रिस्क बिकॉज वी नो in the Monday we have earned lot. So even if we are on the wrong direction, the losing is only of the profit. क्योंकि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जाएगा ना। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो उस टाइम हमको रिस्क नहीं लेना है और so far as possible अवॉइड करना है ट्रेड। Golden rule number 26: do not follow purely bulls or purely bears. Bulls never says that the market is going down and bears never says that the market will going up. ये मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं, one is bull, second is bears. Bulls, take the example of हर्षद मेहता। हर्षद मेहता को साला 3 times इंडेक्स हो गया ना, उसके बाद भी कभी भी मंदी नहीं लगती थी। उसको लग रहा था कि मार्केट लाइफ टाइम अप ही जाएगा और मनु माने उसको कभी भी लाइफ में, कई लोग ऐसे होते हैं ना, उसको कभी भी लाइफ में तेजी ही नहीं लगती। अरे यार मार्केट इतना बढ़ गया, कोरोना के केसेस अभी तो है, रिकवरी नहीं है, ट्रेडर्स बाहर जाते हैं तो किसी का धंधा भी नहीं चल रहा है, बस ये तो आर्टिफिशियल मार्केट है। अरे भैया आर्टिफिशियल है लेकिन यहाँ पे पैसा जेन्युइन लगता है। तो मार्केट में बुल और बेयर्स को अपने को फॉलो करने का मतलब नहीं, मैंने जस्ट थोड़े टाइम पहले ही प्रीवियसली स्लाइड में बताया था कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसके साथ बैठ के ट्रेड करो, मार्केट नीचे जा रहा है तो उसके साथ, जिस दिन वो चला उसके साथ हम लोग बैठ गए। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो राकेश झुनझुनवाला चाहे कुछ भी बोले, वो बोलेगा यहाँ से कि 1 लाख सेंसेक्स हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, सच्ची है, हो जाएगा, ट्रेड करते रहो। लेकिन जिस दिन रिवर्सल हो जाए, क्योंकि टीवी वाले क्या करते हैं पता है, रिवर्सल आ जाता है ना, आई एम नॉट कि भी मैं मीडिया को ऐसे बोल नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी जब भी बेयर मार्केट आता है वो कहां से भी शंकर भाई को उठा के लेके आएंगे, शंकर शर्मा वो दुबई से ढूंढ के लेके आ जाएंगे। और क्योंकि पब्लिक को सबको पता है शंकर शर्मा इज बेयर, इनफैक्ट उसने अपना सबसे ज्यादा पैसा तेजी में ही बनाया है, लेकिन लोगों के दिमाग में ही इज प्योर बेयर्स। और जब भी मार्केट ऊपर जाता है आ जाते हैं, अरे सर को क्या लग रहा है सर, अरे सर को कभी मंदी लगने वाली ही नहीं है लाइफ में, वो इन्वेस्टर है, वी आर द ट्रेडर्स। अपने को बुल्स और बेयर से कोई मतलब नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है मैं बुल्स के साथ बैठ जाऊंगा, मार्केट नीचे जा रहा है मैं बेयर्स के साथ बैठ जाऊंगा। अपने को अपना सपना मनी मनी, अपने को पैसा बनाना है ट्रेडिंग में, वही अपना है। मंदी हो तो भी पैसा आना चाहिए, तेजी हो तो भी पैसा आना चाहिए, किसी को भी फॉलो नहीं करना है, मार्केट को फॉलो करना है। सो ऑलवेज ये आप 2 स्लाइड देख लोगे ना, पता चलेगा कि इसको लाइफ टाइम दिमाग में बिठा के रखो। मार्केट ऊपर जा रहा है तो उस साइड ही सोचने का, मार्केट नीचे जा रहा है तो एज ए ट्रेडर, नॉट एज ए इन्वेस्टर। मेरी यहाँ पे जो भी रूल्स सब बात हो रही है वो एज ए ट्रेडर हो रही है। ट्रेडर हम हर हमेशा 52 हाई में ही पैसा बनाएगा, और अगर मंदी कर रहा है तो 52 वीक लो में ही पैसा बनेगा। सो इन द एंड वी हैव टू बी विथ बुल्स व्हेन द मार्केट इज गोइंग अप एंड विथ बेयर्स व्हेन द मार्केट इज गोइंग डाउन। Whenever there is a sudden upward or downward movement, don't waste your time in finding out the reason, because reason is not important. It's your loss which is important. Try to protect your capital and minimize the loss. जीतू भाई ने बताया कि 134 रुपए में टाटा पावर ले लो, बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने टाटा पावर ले लिया, और टाटा पावर सडनली कुछ ऐसा आ गया कि 129 आ गया। अभी मैं जीतू भाई को फोन लगा रहा हूँ, जीतू भाई फोन नहीं उठा रहे हैं। वो कहां से फोन उठाएंगे, वो तो अपना ट्रेड स्क्वायर अप करेंगे ना, उसको तेरी लॉस से क्या मतलब। आपको अपना खुद का नहीं, वो फोन करते हैं, अरे भैया बताने टाटा पावर में कुछ आ गए, अरे गिर क्यों रहा है, गिर क्यों रहा है। अरे भाई रीजन से क्या मतलब है, गिर रहा है तो निकल जा। कहने का मतलब यही है कि रीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। रीजन जब पता चलेगा ना, तब तक तो टाटा पावर 10-12% गिर गया होगा, और अपनी पोजीशन में अनफेवर इतनी बड़ी हो जाएगी ना, निकलना मुश्किल हो जाएगा। सो एनी टाइम इफ स्टॉक गोज इन योर अनफेवर, डोंट ट्राई टू गो फॉर फाइंडिंग आउट द रीजन, किसके लिए गिरा है, क्यों गिरा है। अरे भाई गिरा चाहे किसकी वजह से हो, लॉस तेरा हो रहा है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ओन लॉस। बी पॉजिटिव इन लाइफ,
build your self confidence, try to learn from every situation. जो भी ट्रेडर्स मार्केट में आता है उसके लिए बहुत जरूरी है। पॉजिटिव डजंट मीन कि आप मार्केट में बाई करते रहो, आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए कि भाई आप जब भी कोई भी ट्रेड करो। कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं स्टॉप लॉस लगाने का बोलता हूँ ना कि भाई तुम तो यार मैं तो स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट ही होता है। अरे भैया तू जब ट्रेड करने से पहले ही स्टॉप लॉस हिट होने का सोचेगा तो तेरा हिट होने वाला ही है। बी पॉजिटिव इन माइंड कि भाई स्टॉप लॉस हिट होगा तो निकल जाऊंगा, लेकिन मैंने जो ट्रेड किया है मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ये ट्रेड मेरे फेवर में जाने वाला है। अगर मैंने कोई भी चीज बाय की है तो ऊपर जाने वाली है, वो दिमाग पे सोच के करी, तो अगर ऊपर जा रही है तो उस व्हाट आई मीन टू से कि आपको जो भी थिंकिंग करना है पॉजिटिव वे में थिंकिंग करना है। मार्केट गिरती है तब भी पैसा आता है। इट नॉट नेसेसरी दैट 16,000 निफ्टी है तो आपका पैसा बन रहा है। हाँ, मार्केट ऊपर जाती है पैसा बनता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि अपने आसपास में जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबने पैसा बनाया है। इसने बनाया, आपने बनाया, मैंने बनाया, स्मिता जी ने बनाया, समीर जी ने बनाया, तो सबके अंदर खुशी रहती है। लेकिन जब मार्केट गिरती है ना, तब जैसे हम लोग कई बार बेयर पोजीशंस लेके पैसा बनाते हैं, लेकिन शाम को दोस्त लोगों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इन सब लोगों का पैसा हम खा गए। एक्चुअली दैट नॉट ओपन। वो बोल रहे यार साला मार्केट गिर गया, मैंने तो ये लिया था, उसमें मेरा लग गया, उसमें मतलब भैया मार्केट गिर रहा है तो तुम ले क्यों रहा है? नहीं नहीं नहीं, या तो यार करेक्शन मोड था, और करेक्शन में से कब पैनिक में आ गया पता ही नहीं चलता। तो कहने का मतलब यही है कि आपको पॉजिटिव वे में खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करके, और एक ही चीज याद रखना है, जब भी आपसे कोई भी गलती हो जाए उसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। Try to learn from each and every situation and each and every mistake. It has taken me 7 years to learn how to become a successful in trading and how to become a successful trader. Friends, remember these lines. It's not only this smartness, intellect which makes you successful trader. It's the discipline which is utmost important to become a successful trader. Successful में कुछ नहीं है। सक्सेस तो बोलो, मैं ही बोल रहा हूँ कि मेरे भी 10 में से 5 ट्रेड गलत जाते हैं, लेकिन व्हाट आई एम डूइंग कि मैं मेरे रूल्स फॉलो करता हूँ और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप में कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है, एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल है कि उसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। सक्सेस नीड्स डिसिप्लिन। इफ यू फॉलो these रूल्स एंड ट्रेड विथ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, I am saying that you can never lose money in speculation. Remember these words again. You can never lose money in speculation. पिछले आफ्टर आई थिंक 2007 मैंने टिल 2021 14 साल में कभी एफएनओ में पैसा नहीं खोया। आई एम टॉकिंग अबाउट एनुअल प्रॉफिट ओनली बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन। मैं हर दिन ये मेरे रूल्स जो दिमाग में ब्लड में बैठे हैं उसको भी हर दिन एक बार पढ़ता हूँ, और जब भी मेरी कुछ भी गलती होती है आई एम श्योर कि मैंने कोई ना कोई रूल्स को उसमें से ब्रीच किया होता है। सो इफ यू फॉलो these रूल्स एंड ट्रेड विथ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यू कैन नेवर लूज मनी इन स्पेकुलेशन। एंड लास्ट फ्यू लाइन्स, whenever you are in a sizable profit, do positive things which inspires you in life. Always try to inspire losers in life because they need your help. A few positive words from you can make them feel good. Try to support them and motivate them to work hard. क्योंकि ये मार्केट में हमने इतने ट्रेडर्स देखे हैं ने कि वो जो एक लंबा लॉस करके निकल गए होते, उसको भी अगर रिवाइव करना है, ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट देम एंड मोटिवेट देम कि भाई तुमने कहाँ गलती की थी और वो गलती अभी नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, एंड आई एम विथ यू, आई एम सपोर्टिंग यू so that you come out of this situation. Last, do not try to become a millionaire in short span of time. It's a gradual process. Rome was not built in a day. Friends, this is my trading rules. और यही rules अगर आप follow करोगे तो I am sure you can never lose money in the trading. Thank you very much. And now onwards, Smita ji, we have a question answer session. What to say, sir? It was a lovely session. I could see that all the participants were completely involved in the session. They have come up with really great questions.
and I have made a list of those questions. We'll take those questions one by one, sir. Sir, Yeah, how yeah. do we go? Would you like, because I have noted those questions down in a Word document. Okay. So I can read it out from You there, can take one by one. You can take one by one. or some of those are mentioned here in the Q&A. All right, sir, I'll just read it out. Yeah, you will. Yeah. Sir, why it is advised not to do average when price is down from the price of earlier purchased stock price? I think the participant wants to ask why we are doing the pyramiding and not doing averaging in the falling market. That is the question. Because whenever market is flowing and you are averaging your stock on buy side, that means you are catching knife. Whenever you are averaging on the wrong side, say on loss side, that means you are multiplying your losses. अगर ट्रेडिंग में आप कोई भी पोजीशंस लेते हो और अगर आप नीचे की साइड एवरेज कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब कि अगर आपने एक लॉट रिलायंस 2100 में बाय किया, अगर आपने 2050 में और एड किया, तो आपकी एवरेज 2075 हो जाएगी. लेकिन व्हाट हैपेंस अगर वो 2000 आएगा, तो आपको जो पहले एक लॉट में जो लॉस हो रही थी वो 2 लॉट में होगी. अगर आप अगेंस्ट, तो वो आप डायरेक्शन ही गलत ले रहे हो स्टॉक में पर्टिकुलर. अगर स्टॉक प्राइस में पिरामिड का मतलब क्या है? पिरामिड सेज दैट वंस इन ए ईयर इफ योर वन पिरामिड गोज राइट, you are in a sizable profit because your profit is multiplying whenever trade goes in your favor. जब भी आप ट्रेड, सिंपल एग्जांपल मैंने अभी डीएलएफ का दिया था, मैंने 285 में डीएलएफ बाय किया था विद स्टॉप लॉस ऑफ 279. से फॉर एग्जांपल मैंने एक लॉट बाय किया, अगेन मैंने 300 में बाय किया, माय एवरेज कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 293 समथिंग, राइट? 2 लॉट. अगेन मैंने स्टॉप लॉस मेरा रिवाइज, मतलब कि भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, वापिस 325 का मल्टी राइज था, उसको क्रॉस किया, अगेन आई एवरेज एट 333, तो मेरा 3 लॉट हो गया, 284 में, 300 में, 333 में. तो अभी मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, और राइट डायरेक्शन में जा रहा है. मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? रॉन्ग डायरेक्शन में एवरेज करते हैं. रॉन्ग डायरेक्शन में एवरेज करने का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉस. व्हाट वी ट्रेडर हैव टू डू? मल्टीप्लाई द प्रॉफिट, नॉट लॉसेस. आपको जो भी करना है वो, और ट्रेड फेवर में जाता है ना तभी आप सही हो. अगर ट्रेड गलत में जाता है मतलब यू आर रॉन्ग. सो ऑलवेज एज ए ट्रेडर, दो ट्रेडर्स हु आर मल्टीप्लाइंग, से एडिंग इन देयर फेवर, दे कैन बिकम ए गुड एंड सक्सेसफुल ट्रेडर. उसका ही पैसा बनता है. लाइफ में मैंने कभी भी, जिसने अनफेवर में एड करके पैसा बनाया, उसमें क्या होगा? वो स्टकअप हो जाएगा. एक बार भी गलत हो गया, बात खत्म हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो एवरेज में. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग. आज कोई भी अच्छा स्टॉक नीचे गिर रहा है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट में ऐड कर सकते हो. बिकॉज इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप अपनी कैपिटल जितनी है उसमें से सर्टेन पोर्शन इन्वेस्ट करते जाते हो. दैट इज ट्रू फॉर द लॉन्ग टर्म. ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है. ट्रेडिंग में आप लेवरेज होते हो. आप एक लॉट रिलायंस का लो आज, तो वो लोट ही आपका हो जाएगा 5 लाख का. यहाँ पे आपने 50,000 के रिलायंस लिए और 50,000 के एवरेज में ले सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग में आप एवरेज करने जाओगे, खत्म हो जाओगे. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल नहीं. इट्स ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड only or add only in your favor. Right, sir. I'll take up the next question. You can just touch upon this topic, sir. I think easy money is not good in the market. Somebody just wants to know your views. If स्टॉक मार्केट में कभी भी इजी मनी होता ही नहीं. पहले तो रिमेंबर, इट्स लुक्स लाइक दैट इजी मनी इन द मार्केट, लेकिन स्टॉक मार्केट में इजी आउटगोइंग होता है, इनकमिंग नहीं होता है. सबको यही लगता है कि मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, पैसा इसने बना लिया, उसने बना लिया, उसने बना लिया. लेकिन एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है. क्योंकि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इजी मनी जो है ना, देयर इज नथिंग लाइक इजी मनी. ऑल द मनी इज हार्ड अर्न मनी. और यहाँ पे तो हम लोग अपने जो हार्ड अर्न मनी है उसको वापस रिस्क पे ले रहे हैं. ट्रेडिंग में देयर इज ऑलवेज some amount of risk in trading.
तो मेरे को कभी भी कोई बोलते हैं ना कि भाई यार आपको तो कुछ नहीं है, बैठे बैठे पैसा बना लेना है, बोला आजा मेरे पास बैठ जा, बना के दिखा। इट्स नॉट ए इजी मनी। सो कभी भी आप दिमाग में ये माइंड पे कि इट्स इजी नॉट इजी मनी, आपको उसके पहले प्रिपरेशन करनी है, उसका पूरा मतलब आज एफएनओ में कोई भी ट्रेड है, आई एम इन द एफएनओ सिंस इंसेप्शन ऑफ एफएनओ इन इंडियन मार्केट। 2001 में एफएनओ आया, तब से मैं कर रहा हूँ, इट विल टेक 7 इयर्स। 2007 के बाद तो सही समझ में आया, तब तक तो ऐसे इजी मनी समझ के पैसा खो दिया, उसके बाद समझ में आया। सो इट्स नॉट ए इजी मनी, व्हाट आई मीन टू से। Eating premium, is it better than buying options? It depends upon situation. It depends upon which stock you are buying. अगर आप बोल रहे हो ईटिंग मनी मतलब सेलिंग द ऑप्शंस, Yes. सेलिंग द ऑप्शंस आप कौन से स्टॉक में कर रहे हो, उसके सामने आप फ्यूचर में बाय कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी थिंग्स। सो वी कांट से दैट ईटिंग मनी इज बेटर देन बाइंग द ऑप्शंस। जब भी कोई मार्केट में इवेंट हो, यू कैन मेक द मनी बाय बाइंग द ऑप्शंस हो। और कभी भी जैसे आपको कोई अच्छे स्टॉक्स हो जो लो बीटा है, जिसमें एकदम वोलेटिलिटी कम है, तो उसमें आप स्टॉक बाय करके उसके ऑप्शन सेल कर भी पैसा बना सकते हो। सो वी कांट से, हाँ एक बात 100% है कि जो भी जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है और मास्टरमाइंड ट्रेडर्स है, दे आर ऑलवेज सेलिंग द ऑप्शंस, क्योंकि उसके भी आप उसके बेस पे, आई एम गिविंग यू सिंपल एग्जांपल, व्हेन द डॉक्टर रेड्डी इज कमिंग from 2,800 to around 3,800 and in the consolidate mode, at that time because of corona the premium, monthly premium on both the side call and put selling, मतलब call and put both the option selling, उसका जो प्रीमियम था वो 400 रुपीज के अराउंड था, 10%। सो आई थिंक कि अगर डॉक्टर रेड्डी ये प्राइस से 10% नीचे जाएगा तो भी मेरे को कोई इश्यू नहीं, आई विल बाय दैट स्टॉक, बिकॉज इन द लॉन्ग रन स्टॉक इज गोइंग अप, और ये लो बीटा स्टॉक था। So at that time, I am selling the options of Dr. Reddy 3,800 and 3,800 strike price, both call and put. But जब भी मार्केट में volatility होती है, it's not advisable to sell the options. At that time, buying the options is good thing. So it's always depends what are the stocks you are buying, selling, what are the. But for a new trader, selling the option is too much risky. I don't advise them to sell the options. Right. I request the participants, the viewers, to post their questions in the Q&A section, please, because in the chat it may happen that it goes behind and I may miss on that. So I request them to post the questions in the Q&A section. Sir, the next question is, what should be ideal percentage of stop loss? Percentage of stop loss, ideal percentage of stop loss is around, as per my experience on what I am doing, is 2%, max to max 2%, but it also depends on what are the stocks you are buying. क्योंकि अगर स्टॉक्स आप लो बीटा कर रहे हो, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, उस टाइप के स्टॉक से जो लो बीटा है, तो उसमें आप 2% के स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप हाई बीटा स्टॉक्स में कर रहे हो कि जिसकी डेली मूवमेंट ही 5-6% की होती है, तो उसमें आपकी स्टॉप लॉस लंबी होनी चाहिए। और स्टॉप लॉस के लेवल्स भी कई बार क्या होता है कि अगर आप चार्ट के बेसिस पे कर रहे हो, तो चार्ट में अगर आप कौन से लेवल पे एंटर करते हो उसके ऊपर भी स्टॉप लॉस बहुत डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली my stop loss is not more than 2% in low beta stocks. लेकिन एंट्री पॉइंट भी उस टाइम बहुत ध्यान में रखना है कि आप एंट्री गलत ले लेंगे तो, so everything is depends upon which type of stocks you are trading. If it is high beta, more than 5-6% stop loss is necessary in even FNO. Okay. How to correctly know trend? Sometimes in big stocks, they are starting to react as per news, which becomes confusion in understanding trends. Only way I can say is that when there is clear-cut trend, what means कि अगर प्राइस कंसिस्टेंटली अप जा रहा है या प्राइस कंसिस्टेंटली डाउन जा रहा है, then there is a clear-cut trend in that stocks. और उसके साथ आप ओवरऑल ट्रेंड देखो, जैसे ओवरऑल ट्रेंड एट प्रेजेंट इज बुलिश, एंड इन दैट केस अगर आपका स्टॉक का ट्रेंड भी बुलिश है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप
कॉन्ट्ररी ट्रेड लेने जाओगे कि जैसे आज भी कई स्टॉक्स हैं वो हाई नहीं बना रहे हैं, लेकिन मार्केट इन ए बुलिश मोड, सो आई एम नॉट शॉर्टिंग दैट स्टॉक्स। लेकिन जब भी मार्केट रिवर्सल होगा और उसमें क्लियर कट, तो वेन एवर देर इज कंफ्यूजिंग ट्रेंड, इट्स जस्ट टू अवॉइड इट। जब आपको ट्रेंड ही समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट अवॉइड द स्टॉक्स और अवॉइड द ट्रेंड। Sir, next, few of the viewers, they have asked, sir, can you share this PPT? But I think we will just coordinate with the office bearers of the ICAI and we will get back to you on that. Okay, you can Right, share sir? that too. Yes. Which analysis is important for a trader, technical or fundamental? Both are important because much more money is being made in technical breakout of fundamentally good stock. जब भी कोई फंडामेंटल स्टॉक्स में, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में टेक्निकल ब्रेकआउट्स आता है, टेक्निकल इज ऑल अबाउट प्राइस लेवल। टेक्निकल क्या होता है? प्राइस लेवल, दे इंडिकेटिंग कि भाई ये प्राइस लेवल पे ये स्टॉक में ये करना चाहिए, और फंडामेंटल आपको कंपनी की हिस्ट्री बताएगा। तो जब भी कोई अच्छे स्टॉक में, टेक्निकल स्टॉक में आइदर ब्रेकआउट्स आता है, टेक्निकल ब्रेकआउट्स आता है फंडामेंटल स्टॉक्स में, तो आपको दोनों चीज ध्यान में रखनी है कि सपोज HDFC बैंक है, उसमें कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ रहा है चार्ट पे, तो आप उसमें बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, क्योंकि ट्रेंड इज गुड, कंपनी इज गुड, और अगर आप उसमें फिर राइड कर सकते हो, राइड मीन्स कि जो लॉस में एवरेज नहीं, फेवर में एवरेज, या तो एवरेज नहीं करो तो भी राइड तो करो एटलीस्ट। हमारा क्या होता है कि हमको एक दिन में 5% मिल गया है तो बहुत हो गया, फिर दूसरे दिन वापस हम 10% ऊपर वही स्टॉक को बाय करेंगे, लेकिन जो पहले लिया था वो होल्ड नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यही कि टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स बोथ आर वर्किंग। हाँ, फंडामेंटली जो स्टॉक्स अच्छे नहीं है उसमें भी टेक्निकल ब्रेकडाउन मिलता है तो भी पैसा बनता है। सो आई एम कंबाइनिंग टेक्निकल्स विथ फंडामेंटल्स एंड कीपिंग इन माइंड कि वेदर द स्टॉक इज, कंपनी इज फंडामेंटली गुड और बैड, वेदर द ट्रेंड इज अप एंड डाउन, इफ द कंपनी इज गुड, fundamentally strong, and technical trend is also supporting, then I am buying that stocks. And again, if the trend is down, company is not fundamentally sound, which indicates that the stock price will again fall. So in that case, I will sell the first and buy later. So it's for traders, technicals is much more important than fundamentals, but fundamentals is also relevant whenever you are taking a position. Right, sir. Right. Somebody has a very basic question. What is the basic meaning of open interest? And we should see cumulative open interest or only simple open interest? So you can answer to these questions together, sir. What is the meaning what is of open interest? What is open interest? उसको describe करने में जाऊंगा, बहुत time लग जाएगा. In the short span, it's not. Open interest means when one is buying and one is selling. Suppose I am buying one lot of Reliance and Smita ji is selling one lot of Reliance, means one open interest is created. One lot open interest is created, whatever may be the quantity of one lot, right? Again, if I am buying and Samir ji is selling, again, there is addition of open interest. Whenever those who have sell is buying and those who have buy is selling, there is reduction in open interest. तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, वही कॉन्ट्रैक्ट जब रिवर्सल होता है तो ओपन इंटरेस्ट डाउन होता है। तो अपने को ओपन इंटरेस्ट कैसे होता है, क्यों हो रहा है, वो दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है इतनी। ओपन इंटरेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डेज ओपन इंटरेस्ट, नॉट क्यूमुलेटिव, नॉट समथिंग। अगर पिछले दिन का ओपन इंटरेस्ट क्या था उसके ऊपर आज परसेंटेज वाइज क्या है। इफ ओपन इंटरेस्ट इज हायर बाय मोर देन 5% with respect to yesterday's open interest and stock is up by say 2, 3, 4% running stock hai to you can buy that stock. Or if open interest is rise along with fall in prices, rise means with respect to yesterday's closing open interest, तो आपको परसेंटेज टर्म में वो देखना है। और उसमें भी जब भी रोल ओवर होते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बहुत स्मॉल होता है। तो जो भी कंपनी में क्वांटिटी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन ज्यादा है उसमें आप देख सकते हो कि विथ रिस्पेक्ट टू यस्टरडेज प्राइस व्हाट आर द ओपन इंटरेस्ट, वेदर इट इज मोर देन 5% अप और नॉट। माय क्राइटेरिया इज if the stock price is up by 2-3% and open interest is up by more than 5%, I am buying that stock
for that day and keeping it in my buy side till the stock goes in my favor. And if the stock is fall by say 3-4% and open interest is again rise by more than 5%, I am selling that stock or shorting that stocks. So ओपन इंटरेस्ट क्या है ये वो समझने की ट्राई इतनी मत करो, जो है वो है, अपने को दिख रहा है वो है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अगर राइज हो रहा है विथ राइज इन प्राइसेस आप विथ रिस्पेक्ट टू यस्टरडे, दैट्स ऑल. We have a huge bank of questions, so I'll have to really filter out the questions, but I'll Okay. try to touch upon most of the areas. Okay, Which is better option to trade, index or stock? जब भी आप मार्केट में नए हो, व्हेन यू आर ट्रेडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स बेटर टू ट्रेड इन इंडेक्स बिकॉज इंडेक्स देयर इज लो वोलेटिलिटी. इंडेक्स में आप 1% के स्टॉप लॉस के साथ भी काम कर सकते हो, और इंडेक्स में आपका अगर लेवल सही देख के आप कर रहे हो तो स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस भी बहुत कम रहता है, और से कि वोलेटिलिटी भी बहुत कम रहती है. तो whenever you are starting for the first time, it is better to trade in index. And अगर आप एक टाइम में मार्केट में हो और आप स्टॉक के ऊपर भी व्यूज ले सकते हो, then you can trade in stock also. So initial stage it is better to trade in index. और इंडेक्स में आप क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आप एक बड़ी क्वांटिटी भी ले लोगे तो आपके स्टॉप लॉस केवल 1 या 2% की रहेगी. लेकिन स्टॉक में देयर माइट बी चांसेस दैट after the end of the market or closing hours of the market something may happen. Stock might be opening gap up gap down, but index gap up gap down very less. Very less. So it's better to trade in index first. Sir, can you briefly touch upon the difference between a trader and an investor? In reality term, अगर ट्रेड आपके फेवर में गया तो आप ट्रेडर हैं, और अगर अनफेवर में गया तो आप इन्वेस्टर हैं. मैंने देखे 99% ऑफ पर्सन्स ट्रेडिंग इन द मार्केट. नहीं, स्टॉक्स तो अच्छा है ना, जैसे मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया. सो देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन द इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग. मैं खुद की बात बता रहा हूं कि ऐसे इन्वेस्टर में जब भी इन्वेस्ट करता था ना, और मार्केट में जब भी बुलिश फेज आता है तब भी सब लोगों को इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि बेयर में तो सब डर लगता है कि ये मार्केट टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो जब बुलिश फेज आता है तब लोग इन्वेस्टर्स ज्यादा मार्केट में आते हैं, बेरिश फेज में कम. एक्चुअली जो इन्वेस्टर है उसको अच्छी कंपनी बेरिश फेज में अच्छे दाम पे मिलेगी, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते हैं. तो देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग. अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको फंडामेंटल्स के ऊपर जाके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जो मैं 10 साल मेरा ट्रेडिंग के बाद कर पाया हूँ. कि आज मैं जो इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक में करता हूँ ना, उसको ट्रेडिंग एंगल से देखता ही नहीं. इवन आई एम नॉट लुकिंग फॉर प्राइसेस ऑफ दैट स्टॉक फॉर से मंथ्स एंड मंथ्स. मैं कई मंथ तक उसका प्राइस भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि प्राइस देखूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा ट्रेडिंग माइंड उसमें आ जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा. अरे यार इतना बढ़ गया, थोड़ा बेच देने, प्रॉफिट ले लेना घर पे. तो कहने का मतलब यही है कि भी इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वो आपको डिसाइड करना है कि आप इन्वेस्टर के ट्रेडर है तो कभी भी आपको पोजीशन ट्रेडिंग की इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं करनी है, और इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टमेंट की पोजीशन ट्रेडिंग में कन्वर्ट नहीं. और सिंपल है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर एवरेजिंग इन द डाउनफॉल बाय साइड में, और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कभी शॉर्ट करते ही नहीं है, दे आर ऑन द लॉन्ग साइड ओनली. उनको ब्लड में एक इन्वेस्टर होता है ना, तो उसको लगता है मार्केट ऊपर ही जाने वाला है लाइफ टाइम. एज ए ट्रेडर यू हैव टू सी वेदर मार्केट इज गोइंग अप और डाउन. तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में बहुत एकदम बारीक लाइन है ना, तो उसको इसीलिए मैंने स्टार्टिंग किया तब. यू मस्ट बी क्लियर whether you are a trader or investor, because there is separate set of rules for both. Right. Sir, what is the ideal percentage of stop loss in option trading? Because option trading is volatile, and we will merge this question with what is the minimum amount with which we can start trading? ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कोई भी अमाउंट से, सपोज आप 1 लोट का ऑप्शंस, हाँ अगर बाय साइड कर रहे हो, और जब भी आप ऑप्शंस बाय करते हो तो आई थिंक कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पर्टिकुलर मंथ के लिए करते हो तो द प्रीमियम विच यू आर पेइंग इज ऑटोमेटिकली द स्टॉप लॉस व्हेन यू आर बाइंग द स्टॉक. हाँ उसमें भी आप, लेकिन उसमें आप 2, 5, 10% का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो ऑप्शन में.
तो ऑप्शन में आपको एक ही चीज करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन। इंस्टेड ऑफ स्टॉप लॉस, मेक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि भाई आप 50 रुपए का कोई पुट लोगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपका 50 रुपये ही जाने वाला है, राइट। लेकिन आप 50 रुपए का पुट 75 रुपये में बेच दोगे और 50 रुपया गया तब खड़े रहोगे, तो यू आर नॉट मेंटेनिंग योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो आपको सो फार एज पॉसिबल व्हेनेवर यू आर बाइंग द ऑप्शंस, तो आपको उसमें, हाँ, इन केस ऑफ सेलिंग द ऑप्शन देयर इज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपको टेक्निकल लेवल्स देख के कि भी अगर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूं और ये लेवल के ऊपर मेरा अनफेवर आएगी तो आई हैव टू स्क्वायर अप द डेट। तो कहने का मतलब यही है कि व्हेनेवर यू आर बाइंग द ऑप्शंस, 5, 10, 15% stop loss will not work out. And how about sir the minimum capital requirement? मिनिमम कैपिटल जैसा कुछ नहीं है, आपको 10,000 रुपए से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो ऑप्शन में, और फ्यूचर में करने जाओगे डायरेक्ट तो फ्यूचर में आपके लिए 1 लाख रुपए भी कम पड़ जाएगा। बट इट्स बेटर दैट कि भी आप एक साइजेबल सम के साथ, ऐसे नहीं कि आप 10-15 हजार रुपये आपके पास है और ट्रेडिंग के लिए आप आ गए, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होगा। साइजेबल सम के साथ आप आओ, कि से फॉर एग्जांपल कि आप नए ट्रेडर्स हो तो 3-4 लाख की कैपिटल के साथ आओ, उसमें आप हर एक ट्रेड में जो मैंने रूल्स बताए वो रूल्स को फॉलो करो, ऐसे करो, तो फिर तो एटलीस्ट आई थिंक कि भाई फ्यूचर में अगर ट्रेड करना है तो 3-4 लाख की कैपिटल के साथ, क्योंकि 1 लाख की कैपिटल के साथ भी आओगे तो आपको ट्रेड बहुत कम कर पाओगे आप। सो बेटर, बाकी ऑप्शंस में तो बहुत हो गया है, 1 लाख रुपए की कैपिटल के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो। Sir, a while ago you mentioned about a live trading session. You said it is on 6th of August. So Yeah. many people are willing to know more about it. This is at present, WRC has organized since the last 2 Saturdays wealth creation through equity, series of wealth creation through equity, and और मैंने ये पूरा कोर्स डिजाइन किया था, तो उसमें हमने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक लाइव ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट रखा है कि भाई जब मार्केट खुलता है तो उसके बाद हम लोग जो इतने साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो क्या क्या चीजें दिमाग में रख के ट्रेडिंग कर रहे हैं, और व्हाई आई एम बाइंग दिस स्टॉक इन द ओपनिंग और व्हाई आई एम सेलिंग दिस स्टॉक इन द ओपनिंग एंड ग्रेजुअली। सो उसके लिए हमारा जो पूरा 3 आवर्स का वेबिनार है उसमें 1 आवर्स एंड देयर आफ्टर 2 आवर्स different speakers are there, but 1 hours 9 to 10:15 live trading in which I will explain to all of you how to trade in future and options and what are the things that it to be kept in mind. चलो ये 1 घंटे में बताना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने क्यों ये स्टॉक बाय किया, what are the reason behind this, और मैंने क्यों ये स्टॉक सेल किया, what are the reason behind this, that's I will try to explain. और सबको लग रहा था कि लर्निंग तो बहुत होगी, थोड़ी अर्निंग भी हो जाए, so learn and earn both together. So sir, does it mean that our viewers, they still stand a chance to register for it, the course or the webinar you are referring yes, to? you can go on WRC site, you can go on Okay. WRC site. I think कि रजिस्ट्रेशन मेरे को अभी पता नहीं है एग्जैक्ट कि रजिस्ट्रेशन उन्होंने क्लोज नहीं कर दिए ना, बिकॉज लास्ट सैटरडे देयर इज मोर देन 1100 पार्टिसिपेंट्स। और ये पूरी सीरीज है, उसमें आपको जिसने भी ये पूरी सीरीज में रजिस्ट्रेशन किया है ना, each and every aspect of trading, investment, so many things we have covered, and top the speakers including Nilesh Shah of Kotak, Rakesh Jhunjhunwala, Anil Singhvi, Vikram Kotak, all are, Vijay Kedia sir भी थे last Saturday, प्रकाश दीवान, तो all professionals जो ये मार्केट के टॉप में हैं वो सबको हमने लेके उनसे कुछ ना कुछ सीखने की। तो ये सैटरडे भी पहले अपना वो है, उसके बाद टेक्निकल सेशंस ऑफ मितेश ठक्कर फ्रॉम CNBC। तो अगर आप है तो एक बार तो मेरा पूरा स्क्रीन दिखेगा, जैसे ये मेरा PPT है ना, वैसे मेरा पूरा स्क्रीन ट्रेडिंग स्क्रीन रहेगा सामने, और मैं सुबह से ये ट्रेड करते रहूंगा इसमें। ओके सर, how to control emotion and how to avoid excess trading? That's very much difficult. इमोशन को कंट्रोल करना तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसे ही हम बोल देंगे कि कल से हम इमोशन को कंट्रोल कर लेंगे, और एक्चुअल ट्रेडिंग के टाइम इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वो तो एक ग्रेजुअल, आपको अपने डिसिप्लिन रूल्स, जैसे ये रूल्स मैंने बनाए वो रूल्स मैंने मेरे ब्लड में बिठा दिए, क्यों अगर अभी कभी भी कोई भी स्टॉक में मैं एवरेज करने जाऊंगा ना
तो मैं नीचे की साइड एवरेज करने जाऊंगा ही नहीं, नीचे की साइड में बेचने ही चला जाऊंगा। कि जैसे मैंने आज एक स्टॉक बाय किया है, तो अगर मेरी स्टॉप लॉस हिट होती है तो मैं नहीं चाहूँ ना तो भी मेरे से स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी। उस तरह से मैंने मेरे माइंड को सेटअप कर लिया है। वो हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कि भी अपना कौन सा माइंड बोलते हैं उसको, अर्ध जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, उसमें मैंने पूरा सिस्टम बिठा दिया है। मैं स्टॉक अगर मैंने लिया है और मेरे फेवर में आ जाएगा तो मैं बेचने जाऊंगा ना तो भी उधर बोल दूंगा मैंने, ले लो ले लो, मतलब आई एम एडिंग इन माय फेवर ओनली। तो वो सब चीज एक टाइम के बाद ही। तो एक आपने ये बताया कि इमोशन कंट्रोल, और दूसरा एक्सेस लेवरेजिंग। एक्सेस लेवरेजिंग के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हर बार क्या होता है, आप एक लोट के लिए ट्रेड करने आते हो, आपका ट्रेड अनफेयर हो जाता है, आप एवरेज करके 2 ट्रेड कर देते हो, फिर 4 ट्रेड कर देते हो, फिर 8 ट्रेड एवरेज ही करते जाते हो अपने अनफेयर में। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आपके पास आपकी तब सब कैपिटल चली गई होती है, यू हैव नो ऑप्शन बट टू स्क्वायर ऑफ द ट्रेड, और उस टाइम कई बार कई लोगों को मार्केट से भी एग्जिट करना पड़ता है। सो ऑलवेज डिसिप्लिन, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, एज ए ट्रेडर डू नॉट ओवर लेवरेज योर पोजीशन। हमसे भी आज की डेट में मेरे से भी ओवर लेवरेजिंग हो जाता है, क्योंकि मार्केट जब एक डायरेक्शन में जाता है ना, हमारे से ओवर लेवरेजिंग होता है, मीन ट्रेड इज इन आवर फेवर, लेकिन लोगों का जब ट्रेड अनफेवर में जाता है तब ओवर लेवरेजिंग होता है। हम तो फेवर में भी ओवर लेवरेजिंग करने के बाद ध्यान रखते हैं कि आपको ओवर लेवरेज नहीं करना है, एक डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तो ये जो दोनों चीज है ना, वो तो आपको खुद के कंट्रोल से ही, आपका कंट्रोल मैं नहीं कर पाऊँ, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। That is very true, and it's a long learned process. It's not something yes, which will yes. come to anybody overnight. Yes, So- yes. Each and every day you have to learn something from market. कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि वो मार्केट से के बोला मैंने सब कुछ सीख लिया। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है यार। हाँ, सीखने के बाद उसमें से मतलब इम्प्लीमेंटेशन इज मच मोर नीडेड इंस्टेड ऑफ लर्निंग। Right. Sir, can we can we rely upon advice given by consultant like Motilal Oswal in their messages? For trading? Perhaps, yeah, that's what they mean, I think. ट्रेडिंग में तो जब आप किसी की भी एडवाइस, अगर इफ यू नो द एग्जिट डोर देन यू कैन टेक एडवाइस ऑफ एनीबॉडी। लेकिन अगर आपको एग्जिट करना नहीं आता है, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम एनीवन। ट्रेडिंग में तो एग्जिट इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ट्रेडिंग सेटअप, माइंड, सब कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये मार्केट में कौन सा स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि मार्केट में सब है, गधा है, घोड़ा है, ऊंट है, सब है। तो अपने को पता है कि हम किसके ऊपर बैठे हैं। गधे के ऊपर बैठे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी वो गिरा देगा। घोड़े के ऊपर बैठे हैं तो उस टाइप से, तो वो तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन अगर आपको किसी की कंसल्टेंट पे, ट्रेडिंग पे अगर आप डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो तो आप रिलाई कर सकते हो उनको। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है ट्रेडिंग में तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो मोतीलाल ओसवाल हो, जी बिजनेस हो, या जीतू भाई हो, कोई अगर एक चीज मेरे को बताओ कि जो आज मैं आपको ट्रेडिंग की एडवाइस किसी को देने नहीं जा रहा हूं, क्यों कि मैं ट्रेडिंग में खुद अगर सब लोग एडवाइस देते, उनको पता होता कि मैं खुद बना लूंगा, तो वो खुद क्यों ट्रेड नहीं कर लेते? आपको क्यों? आप और हम तो कोई उसके रिलेशंस में तो है नहीं। और जो एडवाइस देते हैं ना, उसमें एक चीज मेरे को वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि उनको तो हर दिन हर पल कुछ बताना है, क्योंकि दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम यू। इट्स नॉट नेसेसरी टू ट्रेड ईच एंड एवरी डे। वो तो आप कुछ ना कुछ बताएंगे, ऊपर जाएगा बताएगा, नीचे जाएगा कुछ। कई बार होता है कि ट्रेड नहीं करने जैसा मार्केट, और मार्केट में ट्रेड नहीं करना बहुत जरूरी है। सामने बैठ के ट्रेड नहीं करना। मैंने वही जो क्रिकेट मैच वाला एग्जांपल दिया ना, कि मार्केट में बैठ के ट्रेड तो सब लोग कर लेंगे, आप कर लेंगे, मैं कर लेंगे, सब कर लेंगे हम लोग। लेकिन मार्केट के सामने में पूरा दिन बैठा और आज ट्रेड नहीं किया, तब मेरा जो पेशेंस है ना, उसका इम्तिहान होता है। हाँ साला, आज पूरा दिन बैठा, ट्रेड तो नहीं करना है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है। सो आई थिंक कि भी आप खुद का अपना इतना रिसर्च करो, ये सब, उसके बाद ही आप एंटर हो उसमें। Sir, what is your view about random walk theory that says trends cannot be predicted? What please? Yeah. Sir, what is your view about random walk theory that says trends cannot be predicted? Why? Trends can always be predicted. Trends, जब भी मार्केट कंसिस्टेंटली अप या कंसिस्टेंटली डाउन जा रहा है, जैसे आपको इनिशियल स्टेज में ट्रेंड प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। से फॉर एग्जांपल कि जब मार्केट बिफोर कोरोना
touched high of 12,100 निफ्टी, तो वहां से 11,500 आई, तब ट्रेंड इतना पता नहीं था, लेकिन आफ्टर दैट वी नो द ट्रेंड इज बेरिश, क्योंकि आपको टेक्निकल चार्ट्स ये वो सब बता रहे थे कि ट्रेंड इज बेरिश। तो आप इनिशियल स्टेज में ट्रेंड नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन और दूसरा क्या है कि जब आपके पास स्टॉप लॉस है तो आपको ट्रेंड से क्या, ट्रेंड तो ऑटोमेटिकली डिफाइन होगा ना। आपको जब भी एंट्री ट्रेंड के हिसाब से, जैसे अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, आपको मेरे को सबको पता है मार्केट ट्रेंड इज बुलिश, वी डोंट नो वेयर इट इज स्टॉप। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट आई एम बाइंग Nifty at 16,000, maybe on 16,500, but selling when it comes to 15,500, क्योंकि उस टाइम मेरे को ट्रेंड पता चल जाएगा ना कि ट्रेंड इज वीक। सो आई डोंट बिलीव इन दिस थियरी, ट्रेंड initial stage is not predictable, but later on it's easy to predict. Sir, can you connect volatility with beta trends? Volatility with beta trade, it's difficult, but whenever there is a VIX is going up and up, and the stocks which are high beta or low, how can we say that the stock is high beta or low beta? Low beta means average price range daily is say 1%, 1.5%, 2%, or high beta means where the range in which stock is moving is much higher than. So whenever there is a volatility index depends upon volatility of all the index stocks. ये जितने भी इंडेक्स स्टॉक्स है उसमें वोलेटिलिटी क्या है, और कई बार क्या होता है कि डिपेंड्स अपॉन ओवरऑल मार्केट सिनेरियो। जब कोरोना आया तब मार्केट में मूवमेंट इतनी थी कि एवरीडे मार्केट इज आइदर ओपनिंग गैप अप और गैप डाउन बाय 5 to 6%, 10% इंडेक्स। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ द मार्केट बिहेविंग, and accordingly what are the stocks behavior, and on that basis we can say that volatility and high beta. Right. What positions should you take in long unwinding and short covering? In long unwinding means price are falling it along with fall in open interest, तो उसमें प्राइस जो नीचे जा रहे हैं तो उसमें जनरली क्या करता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है तो हम लोग उसमें पोजीशंस नहीं लेते हैं। क्यों? कि प्राइस नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ समवन इज सेलिंग इज एग्जिस्टिंग बाइंग पोजीशन, तो अगर उसकी बाइंग पोजीशन खत्म हो गई तो ऑटोमेटिक स्टॉक ऊपर भी जा सकता। तो वी आर नॉट जनरली ट्रेडिंग इन लॉन्ग अनवाइंडिंग, एंड इवन इफ यू वांट टू ट्रेड देन बी सेलिंग फर्स्ट एंड देन बाइंग। and next one is long unwinding and short. What's the second part of question? Yeah, and short covering. शॉर्ट कवरिंग मीन्स क्या होता है कि मार्केट में कई सारे प्लेयर्स होते हैं। जैसे पिछले कितने दिनों से आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ निफ्टी इज ट्रेडिंग इन बिटवीन 15,950 to 15,700 ऑलमोस्ट। तो ये रेंज में ऑप्शन सेलर्स होते हैं कि भाई 15,950 के ऊपर मार्केट नहीं जा रही है, 15,700 के नीचे नहीं जा रही, तो कई पुट होल्डर्स और कॉल होल्डर्स और ये सब सेलर्स होते हैं। लेकिन व्हेनेवर मार्केट गोस अप बियॉन्ड दैट लेवल, जैसे आज मार्केट ने पहली बार 16,000 क्रॉस किया, तो दोज हु आर शॉर्ट इन द मार्केट दे आर कमिंग टू कवर देयर पोजीशंस। तो मार्केट ऊपर किस चीज के लिए जा रहा है कि भाई शॉर्ट्स जो है वो कवर कर रहे हैं, और एट दैट सेम टाइम लॉन्ग इज आल्सो ट्राइंग टू बिल्ड अप द न्यू पोजीशन। तो मार्केट में आज दो चीज हुई, एक जो शॉर्ट्स थे वो शॉर्ट कवरिंग कर रहे थे, उसके बेस पे प्राइस अप जा रहे थे, और उसके साथ साथ लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा था कि भाई मैं अब तक लॉन्ग नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही 16,000 निफ्टी ने क्रॉस थी, आई एम ऑन द लॉन्ग साइड बिकॉज मार्केट इज गिविंग ब्रेकआउट। तो शॉर्ट कवरिंग में भी आपको बाय करना है और लॉन्ग अनवाइंडिंग में आपको सेल करना है, बट इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेड इन शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग। इंस्टेड ऑफ यू शुड ट्रेड व्हेनेवर देयर इज लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप में आप ट्रेड करोगे आपको इजी लगेगा, क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, तो यू शुड ट्रेड ऑन इनिशियल स्टेज में। आपको लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप में उसमें क्या फास्ट ट्रेड करना पड़ेगा, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग में। Sir, a viewer wants to know your view. Is it advisable to take second, third, and so on trade in intraday? Means more than 2 trades in intraday. If first trade is squared off, either profit or loss, or it is advisable to just close the screen.
मेरे तो कहने का मतलब ये है कि इंट्राडे, नो वन कैन मेक मनी इन द इंट्राडे ट्रेडिंग. व्हाट डज इंट्राडे? इंट्राडे मतलब कि अगर आपका ट्रेड फेवर में है तो भी आपको एट द एंड ऑफ द डे स्क्वायर अप करना है, लॉस में तो भी आपको एट द एंड ऑफ द डे स्क्वायर अप करना है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है. इंट्राडे में क्या है कि आप 9:15 आपकी मार्केट खुलेगी, उसमें हाँ मैं भी कई बार इंट्राडे ट्रेड कर लेता हूं, बट दैट इज नॉट कीपिंग इन माइंड दैट आई एम डूइंग इंट्राडे ट्रेड. सपोज आज मैंने कोई स्टॉक ले लिया और सडनली वो 5-7% बढ़ गया और मेरे दिमाग में है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, या तो कोई रेजिस्टेंस लेवल है, या मार्केट में मेरे को कुछ जिग-जैग लग रहा है और मैं इंट्राडे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट आई एम नॉट डूइंग ट्रेडिंग कीपिंग इंट्राडे ट्रेडिंग इन माइंड. इसीलिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि एफएनओ में ट्रेड करो, बिकॉज इन द केस सेगमेंट आप टेक करोगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको स्क्वायर अप करना ही पड़ेगा ट्रेड. फ्यूचर एंड ऑप्शन में यू हैव टू कैरी ऑन योर फेवरेबल ट्रेड. सो माय एडवाइस इज यू डोंट ट्रेड इंट्राडे. इंट्राडे में क्या होगा, वो जैसे गेम खेल लिया, अल्टीमेटली तो पता ही नहीं, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, 3:30 बजे तो निकलना ही है. Sir, how to ride the profit? How to ride the profit? Because we always book profit early. यही तो सीखना है कि अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में है तो आप जनरली व्हाट वी आर डूइंग, जितने भी ट्रेड करते हो आप, उसमें से जो भी ट्रेड फेवरेबल है और लग रहा है कि भाई यहाँ से लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी फेवरेबल है, तो आप वो ट्रेड को देखना ही छोड़ दो. सी ओनली अनफेवरेबल ट्रेड, कि जहां पे मेरा अनफेवर हो रहा है, द ट्रेड, दोस ट्रेड व्हिच आर इज लॉस मेकिंग, ट्राई टू कंसंट्रेट ओनली ऑन दैट ट्रेड, क्योंकि उसमें तो ट्रेड खुद अच्छा गया है, वो ट्रेड खुद काम कर रहा है, अपने को सोचने की जरूरत नहीं है. व्हेन द ट्रेड इज इन प्रॉफिट, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं. एक्चुअली वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लॉस मेकिंग ट्रेड, क्योंकि उसमें एग्जिट करना है आपको, कि लॉस मेकिंग है, क्या गलती होगी, किस चीज से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैंने करवाया कि नहीं करा. सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन लॉस मेकिंग ट्रेड. हम लोग जनरली प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड में, जैसे आई एम गिविंग यू डिस्क्लेमर कि भाई मेरा इसमें पोजीशन है इसलिए कि भाई मैं टाटा पावर 119 से लेके बैठा हूं, तो उसके बाद मेरा अनफेवर आया ही नहीं, तो मैं वो ट्रेड स्क्वायर अप ही नहीं करता हूं, बिकॉज माय ट्रेड इज इन फेवर, आई एम इन प्रॉफिट. प्रॉफिट में राइड करना बहुत मुश्किल है, मतलब प्रॉफिट में राइड करना बहुत मुश्किल है. यहाँ पे इमोशन आ जाता है, बुक कर ले, कल चांस मिल जाएगा नीचे लेने को, वो इमोशन को कंट्रोल करना है. वैसे ही मैं बोलता हूँ ना कि 1000 से 2000 रिलायंस हुआ ना, उसमें ट्रेडर ने 200 रुपया बनाया, और 2000 से 1000 होता है तो पूरा 1000 रुपया जाता है, क्योंकि वहां पे यही दिमाग में होता है, नहीं कल ऊपर आ जाएगा बेचेंगे, कल ऊपर आ जाएगा बेचेंगे. सो इमोशन को कंट्रोल करो और प्रॉफिट में राइड करना तो सीख लो कि भाई मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेड है, उसमें जब तक रिवर्सल नहीं आता है या रिवर्सल नहीं दिखता है, आई हैव टू स्टे इन प्रॉफिट. यही चीज तो अपने को, और वो टाइम ही आपको कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल. Sir, chartered accountant, what all activities are allowed? Like trading and F&Os is allowed, but commodity market, currency market, is it allowed for chartered accountants? And what about articled clerks? I think commodity trading and also is not allowed. Chartered accountant can do trading in F&O, but not in cash segment, because cash segment is speculation. So chartered accountant can do F&O trading. Okay. मगर मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर्स नहीं हैं, यू शुड नॉट कम इन F&O also. अगर आपको कैरियर इसमें बिल्डअप करना है, आप बोल रहे हो कि मैं मेरी प्रैक्टिस भी करूं और साथ में F&O भी करूं, तो अगर आप दोनों में से किसी एक को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. आप F&O को भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, अपने क्लाइंट को भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई आफ्टर ऑलमोस्ट 11 ईयर ऑफ प्रैक्टिस, 2007 में मैंने मेरी पूरी प्रैक्टिस छोड़ दी एक साथ, विद इन 1 डे, कि कल से मेरे को प्रैक्टिस नहीं करनी. आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन F&O, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू डू बोथ द वे कि भी हमको, और कमोडिटी मार्केट से वो अलाउड ही नहीं है. और आर्टिकल क्लर्क के लिए सबसे पहले तो जब स्टूडेंट्स हैं तो मार्केट को समझना बहुत जरूरी है. पैसा तो कब भी बनेगा, जब आपको एक स्टेज पे पहुंच जाएगा तो पैसा बन जाएगा, लेकिन पहले आप पूरी थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग ले लो, एक्सपीरियंस ले लो. और अगर आर्टिकल क्लर्क F&O में ट्रेड करना चाहते हैं
तो पहले तो उसको पूरा एफएनओ जानना है, समझना है, और ये जो रूल्स मैंने बताया है ना एज ए ट्रेडर, वो हर दिन हर पल फॉलो करना है ऑन पेपर ट्रेड ऑल्सो. I'll be taking last couple of questions, sir, because we are almost Yes. at the end, and you have touched upon actually many important concepts. Most of the things were covered in your PowerPoint presentation only, because I could see some questions which are again asking the same concepts which you Same, have same. already explained in your PPT. So Yeah. I suggest everyone you visit the YouTube channel of the Pune ICAI, and this webinar will be uploaded there, I think within a day or so. So I'm not requesting sir to repeat any of his rules and all. I request the participants, the viewers, to visit the YouTube once it is uploaded. Okay. And I'll just And touch upon, madam, yes, yes. I know okay, most of the answer of the each and every traders ये आपको पीपीटी में से मिल जाएगा, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं. जो भी आपके दिमाग में है क्वेश्चंस उसके, क्योंकि ये पीपीटी मैंने मेरे 20 इयर्स की लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है ट्रेडिंग में उसमें से ही बनाया है. Yes. I'll just touch upon a last few questions. Have you seen open interest selling is profitable on expiry dates? एक्सपायरी डे में आपको ओपन इंटरेस्ट जो करना है वो करंट एक्सपायरी एंड नेक्स्ट एक्सपायरी. You have to check the open interest position on both the expiry. क्योंकि whenever there is expiry, last 2-3 days there are churning of positions, whether it is long position or short position from one expiry to next expiry. तो कई बार क्या होता है कि ये एक्सपायरी में तो ओपन इंटरेस्ट डाउन होता है, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी में, सो इन द लास्ट 3-4 days we have to concentrate too much on both the expiry, what are the volumes, what are the open interest positions. तो ये सब चीज देखने के बाद ही, so it's difficult to trade according to open interest position during the expiry time. But even if you have to take open interest position of both the expiry cumulatively, so that you know whether the actual open interest is going up or down. Right, right. I'll take the second last question now. Is there any best book which you would like to refer for trading? Any book? मैंने तो आज तक ट्रेडिंग में कोई बुक पढ़ी नहीं है. ट्रेडिंग में जो अपना एक्सपीरियंस है ना खुद, वही एक बुक बन जाती है. Whatever you experience, जब भी आप ट्रेडिंग में पैसा गंवाते हो तो कुछ ना कुछ गलतियां आपने की है, वो गलतियां रिपीट मत करो. और ये इतने रूल्स में मैं 100% आई एम क्वाइट श्योर कि ये जो 32 समथिंग रूल्स है, ये रूल्स में आपको सब कुछ इस, बिकॉज दोज हु आर सक्सेसफुल थियरी इज सेम, कोई नया नहीं बताएगा आपको. जो भी ट्रेडर्स है जिसने भी सक्सेस, उसका यही कहने का आएगा कि भाई आप एवरेज डाउन साइड में मतलब करो, जब प्राइस फॉल होता है उसमें एवरेज मत करो, उसमें करो फेवर में. तो रूल्स तो सब सेम ही है. तो आई थिंक कि भाई आप इंस्टेड ऑफ रीडिंग द बुक्स, what is more important of implementation of rules, emotion control, discipline, that's all. And the last question, sir, can trading lead to long term wealth creation, or would you suggest investing profit of trades to build wealth? This is a very good questions. वैसे मैं मेरे स्पीच की शुरुआत में ये चीज बताने चाहता था, लेकिन अच्छा है कि ये क्वेश्चंस आ गया. Because in the initial stage when we are starting our trading, what happens कि भी हम ट्रेडिंग के लिए एक मिनिमम कैपिटल के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और जो भी ट्रेडिंग में से पैसा आपका बने उसमें से सर्टेन परसेंटेज यू हैव टू इन्वेस्टेड इन ए फंडामेंटली साउंड एंड गुड बिजनेस. तो जो आपने वेल्थ क्रिएशन का स्ट्रेटेजी बताया ना, तो मेरा हर बार यही कहने का होता है, try to earn regular income from trading and invest them in the long term. मैं यही करते आ रहा हूं पिछले 10 साल से कि भी मेरा ट्रेडिंग में से जो भी पैसा बन रहा है वो पैसे के सर्टेन परसेंटेज शुड बी इन्वेस्टेड इन फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स. हाँ, लेकिन एक चीज है कि इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो विद 3 to 5 years मिनिमम ओरिजिन, एंड दैट इज टू इन फंडामेंटल. नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब मार्केट बुल फेज में होता है तो आप कोई ना कोई ऐसे लग रहा है कि हर दिन 20%, अगर हर दिन 20% मिल जाता तो कोई आदमी कुछ बिजनेस करता ही नहीं. अभी मार्केट बुल फेज में है तो ईच एंड एवरी डे
stock is going up 10, 15, 20%, but that's not reality. In the long run, जो भी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स है वो आपको एक्स में मल्टीप्लाई होंगे, 2x, 3x, 4x, 5x. तो आपको ट्रेडिंग में से पैसा बनाना है. ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक ए रेगुलर इनकम, एंड इन्वेस्ट दोस प्रॉफिट इनटू द फंडामेंटली साउंड स्टॉक and create wealth. So both are simultaneously part of the wealth creation, trading and investment. Right, right. Like an apt answer for a very good question, I would say, sir. And I can see that, you know, like everybody is so involved, and actually a lot more questions are pouring in, but there has to be a time when we have to Yes, stop. yes. And yes, sir. So we are looking forward to, you know, have you here on our platform, Pune ICI platform, and other platforms more often, sir. Because I'm sure this is just a beginning, and you know, people would be wanting to listening to you more and more. So thank you, sir, once again on behalf of the Pune ICAI, on behalf of all the viewers, for coming here and like this for this wonderful presentation. I thank Pune, the ICAI Pune chapter for organizing this wonderful webinar. And thank you, viewers, for your active participation. And we will have to end for the day, and we look forward to more and more such renditions from your side. Good night, everybody, and I declare the session is over. Thank you very much.